Bismillahirrahmanirrahim. Ji, Assalamu alaikum. Today is our last session and also one of the last rosas of Ramzan also. So, concluding our session, I think it is but fair to just have a look at some of the things that we have discussed. So, मेरे जहन में ये था कि हम आज we will look at some of the takeaway lessons that we have learned from Ramadan. And it is a month that of course is a blessed month. हमारी बहुत ज़्यादा ताल्लुक इससे रहा, एक spiritual rejuvenation हुई. So we would like that to continue. So I think there are certain things that we should try to arrange for in our lives, continue in our lives, ताकि जो हमारी spiritual awakening है या spiritual rejuvenation है, it has its own impetus. It goes on for the rest of those 11 months. और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की जो वर्कशॉप है, वी नेवर नो अगले साल किसको नसीब होती है, किसको नहीं. And so it's like something that we have to cherish the last few days as well and do our best to make the best out of the time that we have been given. And at the same time, for the rest of the year, of course, gear up for some more struggles, some more efforts that we have to make, or to जिसे कहते हैं ना कि to add something more to your own life. यानी we have been spending our lives the way हम सबको पता है. So in order to be a person who is going to now benefit from this Ramadan, there has to be some addition in our life. कोई value addition होनी ज़रूरी है, which will actually let us know that value addition was the thing that we gained from this very beautiful month. So I will just try to enumerate certain things that we can continue with after the month of Ramadan so that the process which has started should continue not at the same pace, which is not possible, again to some extent, because this is a need of all of us that have. आपको याद होगा, we had mentioned this fact that as human beings we are composed of two planes of existence. एक we have a physical being and एक we have a spiritual self. So that for that physical being we are always looking after the needs of that spiritual being as much as possible. खाना पीना जाना सारा कुछ है, this happens all the year round. तो ये spiritual needs के लिए ये महीने को dedicate किया गया था. लेकिन जाहिर है कि spiritual needs तो हमें we need all the year round. So the some of the things that I'd like to suggest कि उन spiritual needs को how can we still continue with them and at the same time are also in a position कि we are able to do as best as we can. I know कि जब when we enter in our normal lives, our professional needs, our household needs, there's so many things that we have at for this month हमने थोड़ा सा उस side पे रखा होता है. So obviously they cannot be overlooked for a longer period of time. तो जो पहली चीज आई थिंक आई वुड लाइक टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ, हम सब की रिमाइंडर की जरूरत है, इट्स लाइक अ टेक अवे लेसन. वो ये है कि देखिए द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मंथ टू आवर लाइव्स वाज आवर कनेक्शन विद द कुरान. So that connection has to sustain itself for the rest of those 11 months. एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुरान मजीद से जो भी आपका एक रिलेशनशिप है उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे यू कैन कंटिन्यू विद दैट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डेडिकेट सम टाइम एवरी डे. 5 मिनट्स हो, बेशक 6 मिनट्स हो, कम से कम हो, लेकिन कंसिस्टेंट हो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आई टोल्ड यू दिस, उनकी बायोग्राफी से पता चलता है कि व्हेनेवर ही वुड स्टार्ट सम न्यू रूटीन इन लाइफ, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो ये थी कि ही वुड डू इट इन अ वेरी छोटे उस लेवल पे, यानी एक समझ लें एक मैनेजेबल लेवल पे, बट ही विल डू इट कंसिस्टेंटली. अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन एंड मेंटेन द सेम. तो आप बेशक थोड़ा करें, 5 मिनट निकाल लीजिए, 10 मिनट निकाल लीजिए, जो भी आपके लिए आसान. एवरीवन हैज हिज और हर ओन रूटीन इन लाइफ. तो उसमें उन दोस 5 or 7 minutes हैव दैट रिलेशनशिप विद द कुरान कंटिन्यू. द बेस्ट वे इज कीप अ गुड ट्रांसलेशन हैंडी. आपके सरहाने पड़ी हो, आपके फ़ोन में मौजूद होती है, हम सुनते हुए जाते हुए सुन सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एट ऑल कॉस्ट ये तो बहुत ज़रूरी है कि व्हाटएवर यू रीड इट मस्ट बी थ्रू अ गुड ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू रियली गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड, जिसको हम चाहते हैं कि हम सब गेज करें. अदरवाइज़ यू सी व्हाटएवर यू आर रीडिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी बेनिफिट. महज़ अरबी ज़बान के कुछ अल्फाज को दोहरा लेना या सुन लेना, हमारे जनरल कंसेप्शन ये है कि बरकत की चीज़ है. आई मीन बरकत ठीक है, उस बरकत से आपको हिदायत नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसको समझेंगे नहीं. सो इसका जो असल मकसद है वो समझना है. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग द कुरान बाय थ्रू इट्स ट्रांसलेशन, दिस हैज टू बी मैं तो इसको ऐसे बयान करता हूँ, लाइफ लॉन्ग एफर्ट. एंड इट्स लाइक रीडिंग द कुरान पीरियोडिकली, वंस
it finishes, you can pick it up again. Every time you pick it up again, you'll find something new to your understanding. तो ये ज़रूर कीजिए। और इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है कुरान को पढ़ने का। एट टाइम्स जब आपने कवर टू कवर ज़्यादा पढ़ लिया हो, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, जस्ट पिक इट अप फ्रॉम एनीवेयर। आपके पास पड़ा हुआ है कुरान या आपके फ़ोन में है, कहीं से शुरू कर लें। और you'll find out कि भाई वही 5-10 मिनट्स जो आपको मिल रहे हैं, उसके अंदर दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ गॉड दैट हैज़ रियली, आई मीन, आपको वो कनेक्शन मिल रहा है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू गॉड। और इन दैट सेंस दिस इज समथिंग दैट आई वुड से इज अ वेरी वेरी ब्लेस्ड थिंग अगर आप ये कर सकें। एंड अनदर थिंग दैट यू कैन ऐड टू दिस इज कि टू योर यंगर जनरेशन, टू योर नेक्स्ट इन किन, मे बी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हों या आपके अपने बच्चे हों, उनको भी इसी चीज़ पर आहिस्ता-आहिस्ता लेके आएँ कि they are able to understand the Quran, they are able to read the Quran, they are able to follow the Quran. If they have any questions regarding the Quran, uh, वो आपको they can put them before you, और maybe आप खुद भी किसी से पूछ सकते हैं। तो कुरान मजीद को पढ़ने के जो 1-2 तरीके हैं which I always recommend, उनमें से एक तरीका ये है कि when you start the whole book, एक बड़ी किताब है 500 सफ़े की, you plunge into the book, तो उसमें क्योंकि it starts off the history of the Israelites, तो जो हमारी नई जनरेशन है और जो फर्स्ट इनिशिएटर्स होते हैं कुरान में एंटर होने वाले, उनको कनेक्शन समझ में नहीं आता कि भाई हमसे क्या रिलेवेंस है, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन दैट। So for that, I have prepared a book. Inshallah, I would like to present it to you. I've brought it this with me for each of you as well. इसका नाम है Selections from the Quran. So these is a small booklet जिसमें you get an overview of a big book. Hardly 80 to 100 pages में आपको जो कुरानिक मैसेज है that comes across, and for any person who would like to enter the Quran for the first time, read it for the first time, उसके लिए it's like a panoramic view of the Quran. तो और इट्स एन ईजियर व्यू। आपके जो बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन जो कारी साहब से पढ़ते होंगे, उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। इट्स समथिंग दैट वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम, बट स्पेशली यंगस्टर्स जो आपका कुरान पढ़ रहे हैं, लेट्स से अबव द एज ऑफ 12 और 13, जब थोड़ा सा उनका शऊर डेवलप हो गया, तो दिस सिंपल ओवरऑल सिलेक्शन ऑफ द कुरान, और वो मैं द सिलेक्शन हैज बीन मेड ऑन दिस बेसिस के जो आपकी शख्सियत के लिहाज से, योर ओन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योर कनेक्शन विद गॉड, योर कनेक्शन विद रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आपके अंदर जो कंपैशन, काइंडनेस, जो ह्यूमन ट्रेट्स पैदा होने चाहिए, तो वो सारी वर्सेस जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं, एंड दे आर एबल टू establish yourself as a person who is going to be a contributing person to society that he lives in. So that is one area जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। उसका एक दूसरा भी एक चीज़ है, वो भी I'll suggest, आप मैं अपने ग्रुप में शेयर कर लूँगा। There is an app that we have developed. उसका नाम है कुरान फॉर ऑल। It is available and for ages 13 plus, या even for less than that, 10 plus, even as, I mean, आप बिल्कुल ऊपर 80 प्लस जा सकते हैं, right up to the age of 80। वो ऐप इतना सिंपल है कि without making you go into the intricacies of the Arabic language, क्योंकि ज़ाहिर है कि अरबी सीखना is not always an easy task, लेकिन before that, this is an app which teaches you how to understand the Quran by through small manipulations of the Quranic words। वो जब आप ऐप खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। It's called experiential learning. You learn the translation of the Quran without knowing Arabic, but experiencing the translation by manipulating the translated words with the Arabic word। वो एक खास टेक्निक है जो I developed many years ago। So I do hope that that will be beneficial for our younger generation also, and for those who are adults as well। अच्छा, इसका फिर एक तीसरा स्टेप है कि पीपल हु पास थ्रू दी सिलेक्शन एंड देन दे आर आल्सो एबल टू गो थ्रू दैट ऐप। फिर जो लोग रह जाते हैं एंड दे स्टिल हैव अ थर्स्ट टू गो ऑन, फॉर देम आई ऑलवेज रिकमेंड कि फिर देखें, अगला स्टेप है वो ये है कि आप कुरानिक अरबिक को सीखें। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। और फिर मैं आई कम बैक टू आवर यंगर जनरेशन, ऑल ऑफ अस आर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, तो उनके लिए देयर आर सो मेनी एप्स दैट हैव बीन डेवलप्ड इन विच आप जब कुरान पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी सी एफर्ट के बाद you'll not be dependent on a translation. As soon as you read it or hear someone reading it, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। एंड ये मैचलेस चीज है। दिस इज द फाइनल लेवल एंड दिस इज मैचलेस। आई मीन, आप जैसे कुरान समझ में आए आपको, तो आप ये देखिए ना कि जब आप तर्जुमे से पढ़ते हैं तो यू गेन सम इंफॉर्मेशन, लेकिन जब आप असल में डायरेक्टली समझ रहे होते हैं, तो नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन कम्स अक्रॉस यू, बट यू ऑल्सो रिसीव इंस्पिरेशन, क्योंकि these are God's words, they have that impact on you। क्योंकि अल्लाह ताला की जो किताब है, इट्स नॉट जस्ट एन इंटेलेक्चुअल रीडिंग कि आप पढ़ के आपके हाँ जी बड़ी खूबसूरत बात है।
वो एक अगली बात भी तकाजा करती है, यू हैव टू फॉलो व्हाट इट सेज। तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ गॉड्स वर्ड्स है, इन विच यू आर एबल टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज गोइंग टू टेल यू, वो उसका ये सबसे बड़ा एफर्ट ये होता है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आपका दिल चाहता है कि जो बात कही जा रही है ना, आई शुड गो एंड स्टार्ट डूइंग इट, हमारा अमल हो जाती है। ये कुरानिक अरबिक को डायरेक्ट समझने की एक बड़ी ज़बरदस्त उसका एक आउटकम है जो बहुत लोगों ने इसको शेयर किया। तो ये पहला लेसन है। दिस इज़ द फर्स्ट टेक अवे लेसन फ्रॉम दिस रमज़ान, दैट वी मस्ट रिन्यू आवर रिलेशनशिप विद द कुरान एज़ मच एज़ पॉसिबल, एंड एट द सेम टाइम उसके साथ जो हमारी ताल्लुक की जो नहज या बुनियादें हैं, दैट हैव टू बी डिफरेंट। एक चीज़ और जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्पेशली फॉर यंगर माइंड्स, रिकमेंडेड है, एंड I mean anyone else of course who can able to do it, वो है कि start learning small portions of the Quran and adding to the surah that you have already learned. We have a limited memory of, हमने जो मेमोराइज किया हुआ था बचपन में, ज्यादातर वही सूरतें हैं जो आपको याद होती हैं। तो इससे ज्यादा भी ज़ाहिर है सूरतें तो हैं, और कुरान मजीद के इतने जबरदस्त मूविंग मकामात हैं कि आप बाज ऐसे उनके एरियाज हैं, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग देम आप झूम जाते हैं कि भाई ये अल्लाह में यही बात कर सकते हैं। तो इमेजिन इफ यू आर एबल टू मेमोराइज सम ऑफ देम एंड रीड देम इन योर प्रेयर, कितना उनका उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस वजह से ये एक बड़ी इट्स आल्सो अ टारगेट फॉर पीपल दैट दे ऐड दिस दिस स्मॉल थिंग कि भाई आई लर्न वन वर्ड अ डे या टू वर्ड्स अ डे। और वही जो मैंने प्रॉफिट की बात बताई ना, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, वो दो तीन अल्फाज भी अगर आप याद करेंगे तो दो तीन एक दो हफ्ते में एक आयत याद हो जाएगी, एक महीने में आपको दो आयतें याद हो जाएगी। तो दैट इज गोइंग टू रियली अफेक्ट you in a very positive way. So the second takeaway from this month of Ramadan is कि देखिए इस महीने में जो हमें सबसे अहम लेसन जो हम लर्न करते हैं वो है गॉड कॉन्शियसनेस। यानी कि हम तकवा का वर्ड इस्तेमाल आपने सुना होगा अक्सर, तो इसका अक्सर मतलब लोग तर्जुमा कर देते हैं अल्लाह से डरने का, जबकि इसका सही तर्जुमा है गॉड कॉन्शियसनेस, यानी अल्लाह ताला के बारे में मुतनब्बे होना, टू बी अवेयर दैट गॉड इज वॉचिंग अस, आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अच्छा, रमज़ान में ये हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और मैंने शायद आपको एक दो दफ़ा पहले मिसाल दी थी, वो इस तरह से महसूस होता है कि हम सब छुप कर रोज़ा खोल सकते हैं, कोई भी नहीं देख रहा होता, किचन में चुपके से चले गए, कहीं और चले गए, ऑल ऑफ अस कैन ईज़िली फूल पीपल अराउंड अस बाय ब्रेकिंग द फास्ट, बट वी डोंट। क्यों? कि हमें पता है अल्लाह मियाँ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेंस ऑफ गॉड वॉचिंग यू इज़ सो स्ट्रांग कि व्हेन नो वन इज़ लुकिंग, नो वन इज़ वॉचिंग, आप कुछ भी नहीं करते तब भी आप कहते नहीं अल्लाह तो देख रहा है। तो आप ये देखें कि ये एक फीलिंग है जो आप अब भी रोजे में महसूस करें, इफ आई एम एब्सटेनिंग फ्रॉम समथिंग, इट्स प्योरली बिकॉज आई एम बीइंग वॉच्ड बाय गॉड। तो ये फीलिंग है जो आपने ब्रॉट फॉरवर्ड करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, कि भाई अगर आप अकेले में कोई गलत काम कर रहे हैं या आप छुपा के कर रहे हैं, लोगों की नजरों पे आप नहीं हैं, तो ये अगर आपके पास यही फीलिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाए कि देखें जैसे रोजे में मैं एब्सटेन कर रहा था बिकॉज मुझे फीलिंग थी अल्लाह मियां मुझे देख रहे हैं, मैं रोजा ना तोड़ दूं। एग्जैक्टली अल्लाह मियां तो हर वक्त देख रहे होते हैं, इसलिए रमजान तो नहीं देख रहे होते। तो रोजे के बाद जो दूसरा लेसन जैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि ये फीलिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अल्लाह मियां तो आपको देख ही रहा है, लेकिन ये जो रिवर्स फीलिंग है ना कि आप उसकी प्रेजेंस में हैं, और उसकी प्रेजेंस के एहतराम की वजह से यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। This is the most beautiful part. If you are able to carry forward for the rest of those 11 months, कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर we will do whatever we can or whatever we are doing, but with this warning and this caution कि नहीं हम जो कुछ कर रहे हैं ये we can fool people but we cannot bypass God. He is watching us. He is there for us. So I think ये वो एलिमेंट है कि अगर हम कर लेंगे तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प इन आवर लाइव्स। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इंसान तो फॉरगेटफुल तो होता ही है, तो हर वक्त तो हम ये नहीं कर सकते। इट्स समथिंग दैट जितना ज्यादा हम कर सकें, तो ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं और गलत काम कर भी लेते हैं, क्योंकि वो उसके बाद फिर एक और अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, वो है अल्लाह ताला से रुजू करने की, तौबा करके वापस आने की। तो कभी अगर आपसे ये भी हो कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच एंड यू ब्रेक दैट, यू डोंट फील, यू डोंट हैव दैट फीलिंग कि आप अल्लाह की प्रेजेंस में और आप गलत कुछ बात कर भी लें, तो जस्ट टर्न बैक टू गॉड, रिपेंट बिफोर हिम, बिकॉज यू सी दैट इज समथिंग जो इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला बयान करते हैं कि ही इज वेटिंग फॉर द पर्सन हु माइट ब्रेक अ सर्टेन रूल टू कम बैक टू हिम। तो इस वजह से यू फॉरगेटफुलनेस इज लाइक अ ब्लेसिंग आल्सो, बिकॉज हर वक्त नेकी करना तो शायद हमारे बस में नहीं है, विच इज simply beyond us. We are human beings.
लेकिन अगर गलती हो भी जाए तो भी गॉड इज मर्सीफुल, ही इज देयर फॉर अस। और वो इतनी ज्यादा इस बारे में जज्बाती हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप में जज्बात में आके आपसे कोई गुनाह हो जाए और यू टर्न टू हिम इमीडिएटली, और वो गुनाह अल्लाह से मुतल्लिक हो, किसी और का हक आपने ना मारा हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं इट्स इनकम्बेंट अपॉन मी दैट आई विल फॉरगिव यू इफ इट इवन इफ इट हैपेंस रिपीटेडली। इस वजह से दिस इज कैरी फॉरवर्ड कि अपनी जिंदगी को हम इस तरह से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आवर लाइफ दैट वी थिंक दैट गॉड इज वॉचिंग अस एंड एज मच एज पॉसिबल वी आर एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तीसरी चीज जो हमने रमजान से सीखी, और अगेन इट्स अ लेसन दैट वी कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ दोस ऑफ दीज 11 मंथ्स, वो ये है कि देखिए रमजान आपको जो एक पैगाम देता है जिसको प्रॉफिट ने बहुत अच्छा बयान किया। उन्होंने बयान ये किया कि मन मन सामा रमजानन ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इसका मतलब ये है कि जिसने नमाज रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ, अल्लाह ताला के पैगंबर कहते हैं कि उसके जो फिर माइनर गुनाह होते हैं, उसके जो अदना गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला उनको माफ कर देते हैं। गोया वो ये हमें पैगाम दे रहे हैं कि दिस इज अ मंथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप यू सैट डाउन फॉर दोस 30 और 29 डेज, आपकी रूटीन शॉर्ट हो गई, आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो अल्लाह मियाँ की तरफ ज्यादा बढ़ गई। उस बढ़ने में ज़ाहिर है आपने बहुत सारे वो काम किए जो अल्लाह ताला को खुश करते थे, लेकिन उसमें एक काम आपने ये भी किया, और ये रमज़ान का वो पैगाम है जो आप शायद यू रिमेंबर वी टुक दिस इन द वेरी फर्स्ट लेसन दैट वी वर डिस्कसिंग हियर, कि दिस अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन्स दैट वी कैन लर्न इन दिस मंथ। क्योंकि ये दिस दिस इज लाइक अ मंथ ऑफ विड्रॉल। इसमें आप थोड़ा सा अपने यू यू विड्रॉ टू योर ओन सेल्फ, कुछ आपको टाइम अपने लिए ज़्यादा मिल जाता है। यानी हम तो बाज़ रिवर्स कर देते हैं, लेकिन इसकी फिलॉसफी यही है, यू स्पेंड मोर टाइम विद योरसेल्फ, सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये हम कर रहे होते हैं। और इस सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आई लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि इसके लिए देयर इज methodology also which is suggested, and that is कि before going to sleep at night every day just evaluate कि आपने पूरे दिन में क्या किया, and it will flash before your eyes, और आपको पता चल जाएगा कि भाई देखिए दिस इज वेयर आई फॉल्टेड, दिस इज वेयर आई नीड टू recoup and improve myself, तो that one night से पहले एक 10 मिनट की evaluation is going to be once again a very helpful thing कि आप अपने आप को evaluate कर रहे हैं। और उसके बाद अगर if you are somehow able to not carry forward with this, don't think कि ये एक ऐसी चीज है कि आपने इधर बटन प्रेस किया, उधर आपने अपनी accountability के नतीजे में फलां फलां चीजें जो आप इम्प्रूव करना चाह रहे थे वो फौरन हो जाएंगी, फौरन नहीं होंगी। इट विल ऑलवेज टेक टाइम। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आप यू लिस्ट वट एवर हमारे यहाँ गलतियां हैं वन बाय वन, लिस्ट द इजिएस्ट वन, आई मीन द इजिएस्ट वन टू गेट रिड ऑफ, जो सबसे आसान हमारे में खामी है दूर करने की, उसको लिखें ऊपर, फिर नेक्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ एट द बॉटम। स्टार्ट ऑफ विद द इजिएस्ट वन एंड मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि भी आज मेरे से ये काम हुआ है, कल आई विल नॉट डू इट। बट रिमेंबर ये एक ऐसी चीज है कि इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल दैट इज लाइक डस्ट सेटलिंग इन योर होम्स। आप अपने घर को वैक्यूम तो रोज नहीं तो 2-4 दिन के बाद तो कर ही लेते हैं। ये तो नहीं कहते कि भाई अब मैंने कर लिया तो बस अब मेरा घर हमेशा साफ रहेगा, बिकॉज दिस डस्ट इज इन द एटमोस्फेयर, इट इज हेयर एवरीवेयर। इसी तरह से ये जो डस्ट है हमारी गलतियों की, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो वो गलतियां आपसे रोजाना कम होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी होंगी। तो जस्ट एज योर हाउस नीड टू बी वैक्यूम एवरी नाउ एंड देन, तो आवर हार्ट्स ऑल्सो नीड दिस वैक्यूम एवरी नाउ एंड देन। और ये वैक्यूम दिस इज द सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला वैक्यूम है कि आप बेरहम तरीके से अपने आप को देख रहे हैं एंड जहां जहां आपको गलती महसूस हो रही है। और लास्टली इसमें एक और चीज भी है कि नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इन करेक्टिंग योरसेल्फ। जैसे आपने कमिटमेंट की ना कि आज मैंने ये गलती की है एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, लेकिन ऐसा होता है कि व्हेन यू मेक दिस कमिटमेंट अगले दिन और ज्यादा गलती होती है। ये अजीब सा है, बाज दफा होता है। तो शैतान का ये बड़ा हरबा है, उसका जो अरबी में नाम है ना वो इब्लीस है। तो इब्लीस का लफ्जी मतलब है वन हु हैज लॉस्ट होप, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो चुका है। उसका बड़ा सबसे बड़ा हरबा ही होता है कि ही मेक्स यू लूज होप इन योर ओन सेल्फ। वो कहेगा यू आर गुड फॉर नथिंग, रोज कमिटमेंट करते हो या करती हो और अगले दिन फिर तोड़ देते हो। तो ये दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी ऑलवेज एड्रेस्ड, इवन इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक एनी हेडवे, डजंट मैटर। कोशिश करते चले जाएं, बिकॉज देखिए अल्लाह मियाँ के यहाँ जो चीज काउंट करनी है वो कोशिश है, दैट इज ऑल। कोशिश करके भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा शुरू कर देते हैं।
अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि आपने हर वक्त सक्सीड करना है, उन्होंने कहा नहीं, डोंट लेट गो। तो ये सेल्फ बिलीफ है दैट हैज टू बी देयर विद यू कि नहीं, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ माय व्हाटएवर आई एम डूइंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज होप। तो ये एक चौथा लेसन है ऑफ that we have learned from Ramadan, and I think that we should carry forward. एक पांचवी चीज again that we have learned from this month, and that is again something that we should continue for the rest of the year, वो है कि देखिए हम इस महीने में बहुत चैरिटेबल हो जाते हैं। गाड़ियां मतलब आप जा रहे होंगे, रास्ते में लोग रोके राशन तकसीम कर रहे हैं, जो विच इज अ साइट यू विल नॉट सी इन द रेस्ट ऑफ दोज 11 मंथ्स। यानी एक जो फयाजी और जनरॉसिटी का एक समुंदर है जो इंसान के दिल में आता है कि भाई आई वुड लाइक टू शेयर माय ब्लेसिंग्स विद पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। तो ये इट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड इन रमजान, इसलिए कि आपका दिल होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ही करें। और ये अगेन दिस इज समथिंग दैट मस्ट कंटिन्यू फॉर आवर रेस्ट ऑफ those 11 months, and I'm sure यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं they're already doing that, लेकिन मजीद और शऊर के साथ कि और जितना हम कर सकते हैं हम उसको ऐड करें अपने रेpertoire के अंदर। लुकिंग फॉर पीपल स्पेशली, आई ऑलवेज हैव स्ट्रेस्ड दिस इन आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो, कि सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी ये है कि हम उन लोगों तक पहुंचें who are not able to come to you, who are so who have that self esteem कि वो मांगने आपके पास नहीं आएंगे, बल्कि आपको उनके पास पहुंचना है। तो एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू फाइंड आउट पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज। रमजान में तो उलट होता है ना, रमजान में तो मांगने वाले आपके घरों में पहुंच जाते हैं, आपको गाड़ी में रोक लेते हैं वगैरह वगैरह, और आप ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते, चले थोड़ी बहुत करके दे देते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ रमजान दिस इज नाउ एक्टिविटी दैट हैज टू बी डन। आप थोड़ी बहुत वेटिंग करें, थोड़ी बहुत इवेल्युएशन करें कि जो आप जिसको आप हेल्प कर रहे हैं ही और शी शुड बी इन अ पोजीशन के भी वो डिजर्व करता है या नहीं करती, बिकॉज प्रोफेशनल बेगरी इतनी आम है कि यू माइट गेट फूल्ड फ्रॉम देम, और आप ऐसे उठा के पैसे दे दें। इस वजह से कैरिंग फॉरवर्ड दिस चैरिटेबल बिहेवियर, प्लीज इसको मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर एबल टू डू दिस एज मच एज पॉसिबल टू द राइट इंडिविजुअल। रीच आउट टू पीपल हु आर रियली इन नीड। और नॉट ओनली पीपल, आप देखें इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग दिस जॉब एट अ कलेक्टिव लेवल, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे है, चाहे वो सेहत या प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काउंसलिंग है, इमोशनल नीड्स को मीट करने के लिए है, उम्र रसीदा लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए है, ब्लाइंड की रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स दैट आर वर्किंग फॉर दिस। आप कभी गूगल करें और आप उसमें ये टाइप करें टॉप मोस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि एक अनएंडिंग लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। और इसी वजह से लोग एक ये बताते हैं, इट्स नॉट वेरी वेरी वेरीफाइड बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि द अमाउंट ऑफ चैरिटेबिलिटी वी पाकिस्तानीज डू इज अनमैच्ड फॉर मेनी अदर कंट्रीज। यानी बहुत सारे और ममालिक से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा चैरिटी जाती है। और आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा जब 2005 में जल्जला आया, 2010 में जब फ्लड्स आए, इसी तरह की कैलामिटीज, तो हमारी नेशन एक हो जाती है। दे स्टैंड और दुनिया जहान की चीजों में दे अपने घर में जाके जो कुछ उनको नजर आता है इन कैश एंड काइंड दे स्टार्ट गिविंग इट। तो ये एक इतनी जबरदस्त चीज है कि दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड अपॉन। एंड एज आई सेड कि ये देखिए इसके अंदर जो दुनिया में यू डोंट हैव टू बी अ एदी, यू डोंट हैव टू बी अ रूथ फाओ, वो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। हम ये छोटे छोटे काम जो हैं वो कर सकते हैं। और आई ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल व्हेन दे आर डूइंग दिस कि ये हमारे अनसंग हीरोज हैं। I mean, these are uncelebrated heroes and you'll find them, I think शायद आप सब में से बहुत सारे इस वक्त यहाँ मौजूद हों कि जो चुपके चुपके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो हमें से शायद बहुत लोगों को पता ना हो, और आप वो खिदमत कर रहे हैं सोसाइटी। और ये सोसाइटी शायद इसी वजह से सर्वाइव भी करी और आगे भी बढ़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दीज अनसंग हीरोज। मुझे कभी कभी वो ख्याल आता है कि 9/11 का वाकया जब हुआ तो कुछ फायर फाइटर्स थे who plunged themselves into that inferno at that time and they knew that they are not going to come out। अजीब बात यह है कि उनके यहाँ उमंग ये थी कि शायद एक जान बच जाए उनसे। 10 or 12 ऑफ देम दे न्यू कि भाई जिस तरह की वो आग है, वंस दे एंटर दैट देयर इज नो टर्निंग बैक, या वो ऊपर से छलांगे लगा सकते हैं। बट द ओनली थिंग दैट प्रेस्ड देम और दैट अर्ज्ड देम वाज दैट फीलिंग कि भाई मे बी वन ह्यूमन लाइफ। तो लुक एट दी, मैं कहता हूँ वो हमें उन फायर फाइटर्स के शायद नाम भी नहीं पता होगा। और ये तो एक वाकया है, इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं फायर फाइटर्स के, ये जो आपको नजर आएंगे कि खुद जल के भस्म हो गए हैं बट दे वर एबल टू सेव वन लाइफ और मे बी कपल ऑफ लाइफ।
तो यू सी दीज आर आवर अनसंग हीरोज। और सोसाइटी में हम सोशल मीडिया पे रोजाना हर तरह की खौफनाक भयानक खबरें सुनते हैं, बट डोंट फॉरगेट ये खबरें भी चल आपको जगह जगह नजर आ जाएंगी। यू स्टिल फाइंड सम ऑफ दीज हीरोइक्स, सम ऑफ दीज फीट्स ऑफ वंडर के लोग कर रहे हैं। और अभी मैं कल ये अखबार में पढ़ रहा था कि एक बच्ची एग्जाम दे रही थी, आजकल शायद मैट्रिक के कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, एंड शी फेंटेड और शी वाज क्लोज टू। तो उसने उन्होंने रेस्क्यू 11 को फोन किया, तो वो जो बंदा उनके पास आया तो ही हैड दिस ग्लूकोज का सारा ना ड्रिप का था। अब वो सिचुएशन इस तरह की थी कि शी कुड नॉट हैव मिस दैट एग्जाम फॉर सम रीजन, अदरवाइज ही शी वुड हैव लॉस्ट 1 ईयर। तो वो जो 1122 का बंदा था, ही उसने वो पकड़ ली वो चीज, एंड ही स्टूड देयर फॉर 1.5 आवर, जो उसका पेपर का टाइम रह गया था। आईवी लगाई उसको, और उससे जो भी उसको मेडिसिन की जरूरत थी, एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर फॉर दैट, फॉर द रेस्ट, क्योंकि उसको पता था कि इफ आई डोंट तो वो इट विल नॉट बी प्रॉपरली। तो एक छोटी सी चीज है, मतलब आई विल फाइंड कि इस तरह के इतने वाकयात हैं कि आदमी जो है उसको कुछ उसने कुछ गेन नहीं करना, बट वॉट उसके जहन में सिर्फ ये है कि यार चलो छोटी सी कोई मेरे अपनी कोई नेकी हो जाए। तो ये वो चीज है जो एक्चुअली हमें सोचना है कि कोई नेकी छोटी नहीं होती। नेकियां जो होती है ना, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का आपने अक्सर सुना होगा, बड़ी मामूली होती हैं। एक स्ट्रे डॉग को पानी पिला देना, एक 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 चिड़िया जो आपके घर में मतलब कहीं से आ गई, उसके लिए आपने दाना रखा हुआ है या पानी आपने रखा हुआ है। आपने किसी ऐसे शख्स को कि जो बहुत बूढ़ा है, ही इज नॉट बीइंग एबल टू क्रॉस द रोड, उसको आपने सड़क पार करवा दी। आपने किसी जख्मी जानवर को जो पड़ा हुआ है, आई मीन पीपल आर पासिंग एंड ही जस्ट वहां तड़प रहा है वो, बिकॉज एक गाड़ी ऊपर से गुजर गई है या कुछ हो गया है, उसको आपने थोड़ा कोई हेल्प कर दी। तो आई मीन दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू कंटिन्यू। जो मैं असल में बात बताना चाह रहा हूँ बड़े दिल से, दर्द से, कि पैसा ही सिर्फ वो चीज नहीं है कि जो लोगों के लिए चैरिटेबिलिटी का बायस बनता है। इट्स नॉट जस्ट मनी। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, दैट इज द इजिएस्ट वे, बिकॉज यू जस्ट नीड टू पिक समथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, यहाँ दे दिया वहां दे दिया, क्रेडिट कार्ड से टाइप करके आपने आगे पहुंचा दिया। इससे कहीं ज्यादा बड़ा जो है, जो आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन का बायस बनेगा, वो इस तरह की एक्टिविटी। पैसा इज द इजीएस्ट थिंग टू गिव, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू स्पेंड दैट टाइम एंड दैट एफर्ट। वो जाएं लोगों के पास और उनको मुस्कुरा के मिलें, उनसे हाथ मिलाएं, मेक देम फील दैट यू आर एक्सेसिबल टू देम। यू आर नॉट एन एरोगेंट पर्सन। कोई नहीं एरोगेंट होता, लेकिन बाज़ दफा आप विड्रॉल रहते हैं ना, तो लगता है कि जैसे आप योर योर ओन सेल्फ नहीं। आप अपने आप को एक्सेसिबल करें लोगों के सामने, यू मेक देम फील, यू हेयर आउट व्हाट दे हैव फॉर यू। तो यू विल फाइंड कि ये वो चीजें हैं जो हमें इस वक्त करनी है। और ये वो चीजें हैं कि जो असल में दे आर टू बी डन एज आई सेड फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। वॉलंटियर वर्क है जो मेरे ख्याल है आप में से शायद बहुत ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। उसी वॉलंटियर वर्क को और उसकी रोशनी बढ़ाइए, उसमें और लोगों को इंक्लूड कीजिए। देर आर हमें एज ए सोसाइटी इसकी जरूरत है कि हमारे हर बंदा कंट्रीब्यूट करे इस सर्विस के अंदर। एवरी सिंगल इंडिविजुअल सिटिंग देयर, या एवरी सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग हेयर एंड हैज एन इन्फ्लुएंस इन हिज फैमिली और हर फैमिली, ग्रैंड किड्स, नीसेस, नेफ्यूज जितने भी हैं, उनको ये बताएं कि देखिए इंसानियत की खिदमत और इंसानों के साथ ताल्लुक, ये पहला मजहब है आपका। पहला मजहब इंसानियत है, फिर आप मुसलमान, फिर आप क्रिश्चियन हैं, फिर आप हिंदू हैं। अगर आप इंसान नहीं हैं, अगर आप और मुसलमान हैं, तो फिर आई एम सॉरी, ये फिर एक उल्टी तरतीब है। फिर आप बड़े घनौने किस्म के मुसलमान होंगे। फिर आपके यहाँ पे माथे पे निशान होगा और आप बड़े रिलीजियसली नजर आएंगे, लेकिन आपसे वो घिनौनी हरकतें सरजद होंगी जो अनइमेजिनेबल हैं। क्यों? कि आपने इंसानियत तो सीखी नहीं, मुसलमानियत सीख ली। तो ये जो इंसानियत का जो जोर है, जो इंसानियत का जो एलिमेंट है, टू बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। आपको पता है ये लेसन कुरान ने दिया है हमें। इट वन ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन वर्सेस ऑफ द कुरान। कुरान ये कहता है एक जगह पे, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअराफू। कि हमने ये नहीं कहा ए मुसलमानों, नोट दिस, कहा ए इंसानों, यानी सबको मुखातिब किया। ए इंसानों, एवरी ऑल मेंबर्स ऑफ मैनकाइंड, we have created you from a single pair of man and woman, min zakarin wa unsa, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअराफू। इसलिए आपको अलग अलग बनाया ताकि अगर आपके ट्राइब्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, तो आपकी शनाख्त बेशक अलग रहे, लेकिन ये जो शनाख्त है ये अलग अलग होना है। दिस शुड नॉट बी अ मीन्स ऑफ एनी एरोगेंस और थिंकिंग योरसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू अदर्स। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में से अच्छा वो है जो गॉड कॉन्शियस है, जो मेरे से, अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बारे में फिक्रमंद है, मेरे से कनेक्शन रखता है, और उसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं वो मैं ही जानता हूं। आप किसी को जज नहीं कर सकते कौन कितना गॉड कॉन्शियस है। इस वजह से ये देखिए, जो इंसानियत के तौर पे जो पहला मजहब है, हम उसको भूल बैठे हैं।
और ये रमजान का महीना ये बार बार इट beckons us, it calls us to back to this basic fact in life, be a human being. This is the biggest thing that you can be. This is the biggest, तो मैं कहूँगा जो खुशी आप बांट सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वो यही है, ये जो इंसानियत की खुशी है। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव द ग्रेटेस्ट कॉमनैलिटी। हम में से मजहबी लिहाज से उसका इश्तराक कम हो, लेकिन इंसानी लिहाज से तो नॉन बिलीवर भी आपके साथ खड़ा हुआ है, जो खुदा को नहीं मानता, जो नॉस्टिक है या एथियस्ट है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू से यस, हाँ कि ये ह्यूमन वैल्यूज पे हमें इकट्ठे होना है। तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को वंस अगेन बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है। वेरी बहुत मामूली बात है, लेकिन जितनी ज्यादा मामूली है, जितनी पेशपा उफ्तादा है, उतनी भूली हुई भी है। So let's remind ourselves that this is a month of being, if we are charitable, we have spent a lot of money on the other people, then for the rest of those 11 months, ठीक है, पैसे भी spend करें, लेकिन make an effort through your own skill, your own profession, through your own time, through your own, जो भी आप कर सकते हैं, through your own influence, to be able to contribute for what God has sent you. Each one of us has been sent from God with some ability or the other. आपको उसको अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करना है। इसके साथ हमारा टाइम भी पूरा होता है जी। With these small few words, I just wanted कि हम that we are, now that we are ending this month, we are able to still remain in touch. हाँ, दो छोटी और बातें मुझे याद आ गई। I'll just end with that. वो ये है कि देखिए एक काम और हम और भी कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ दोज 11 मंथ्स जो रोजे के साथ हमारा ताल्लुक है, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में ही वुड कीप सम ऑप्शनल फास्ट एवरी मंथ। सो 2 या 3 रोजे हर महीने वो नफली रखते थे। अगर हमें से वो लोग कोई एहतमाम कर सके रमजान में तो हम वी आर वेरी डिलिजेंट, बट अदर देन दैट वी आर एबल टू मेंटेन 1 और 2 और 3 फास्ट पर मंथ, तो वो आपका जो फास्टिंग के साथ और रोजे की जो बरकत के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक है वो बरकरार रहता है। एक तो मैं ये चाह रहा था कि जितना भी हम कर सकें, और दूसरा ये था कि देखिए इस महीने में एक और हमें बड़ी कमाल चीज हासिल हुई है, वो ये कि व्हेन वी गेट अप फॉर सुहूर वी आर एबल टू ऑफर द तहज्जुद प्रेयर, दोज ऑफ अस हु आर एबल टू। तो उनके लिए मौका था, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड प्रेयर्स कि आप अल्लाह ताला की राह में यू ब्रेक योर स्लीप एंड यू गेट अप एंड प्रे टू हिम। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आप वंस अ मंथ, मे बी वंस अ वीक प्लान करें कि मैं एक दिन फजर से पहले थोड़ा सा उठ जाऊंगी, उठ जाऊंगा 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। वो आप अपने फोन पे वो टाइम देख सकते हैं, तो फजर के टाइम से पहले किसी वक्त भी आप 10 मिनट पहले उठ जाएं। आप वितर की जो नमाज जो आपने रात को अगर पढ़ी है, या उसको आप रिपीट कर लें अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उस मौके पर पढ़ ली, ये तहज्जुदी की नमाज। सो इफ यू आर एबल टू कंटिन्यू विद द तहज्जुद प्रेयर फॉर द रेस्ट ऑफ दोज 11 मंथ्स इन एज मतलब क्वांटिटी एज इज पॉसिबल फॉर यू, अगेन दिस इज समथिंग दैट इज I think that's a very beautiful takeaway from the month of Ramadan. तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ, and we can now have your questions. So, my son-in-law just accepted Islam. तो वो उसके लिए कौन सी ऐप या कौन सा बुक जो उसको आसान तरीके से समझे? वो what was he before? Christian. तो उनको सबसे पहले तो बाइबल की बहुत, I mean, was a practicing Christian? जी। अच्छा, तो there are very good selections from the Bible. He must have gone through them. I think अपनी अपनी किताब से उनको शुरू करना चाहिए, because you see there are so many things which are found in the Bible and also found in the Quran. So we have actually made, I mean, compiled a selection from the Bible as well. तो वो जो Bible selections हैं, जिससे उनको ये सबसे पहले बताया जाएगा कि the religion that he is converted into is so similar to the one that he is still following. पहले तो वो जो अजनबियत को दूर करने के लिए अपनी ही किताब की selections, and then I would say selections from the Quran, the other thing that you can do. नफ्सों में कोई ऐप कोई बुक हो जो That I can, जी, I can get in touch with you and I can, वो जो एक दो books हैं जो very concise introduction to Islam, a concise introduction to the Quran and to the basics of Islam. So I'll have it. तस्वीर का पढ़ के और उसका तलफ़्फ़ुज़ पढ़ के पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन बाकी चीजें जो है तो कोई ऐप या कोई ऐसी जी, चीज हो तो आप I can get in touch with you and we can, I can suggest a lot of things, and बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, यानी एक जब आप किसी को कन्वर्ट करता है ना, तो give that person a lot of time to slowly evolve, क्योंकि हमारा एक जज्बा होता है ना कि भाई सारे काम रोजे भी रखवा लिए जाएं, सारे काम करवा लिए, सारी नमाजें पढ़ा ली जाए, नहीं, बहुत आराम से। और ये because you see this is not just an emotional fast, that should not be an emotional decision, it has to be an intellectual decision. तो ये बात कि intellectually वो make him understand कि भाई ये
क्या मजहब है, इसके पीछे क्या है, और उनको ये बताना कि इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल द प्रीवियस प्रॉफिट्स। For a year or two, बिल्कुल ठीक है। he went through everything. He even suggested a name for himself. कि मेरा ये नाम आप रखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंडिविजुअली आई विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, आई सजेस्ट सम। सजा और जजा का डिफरेंस तो बताएं, क्योंकि जब किसी को कुछ खराबी हो रही होती है तो हम कहते हैं इसको सजा मिल रही है, जब हमें कुछ होता है तो हम कहते हैं कि हमारी आजमाइश, हम आजमाइश में है। हाँ जी, So what's the difference and how do you differentiate कि भाई किसको सजा मिल रही है और क्यों, और किसकी आजमाइश हो रही है एंड क्यों? देखिए ज्यादातर जब आपको दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं बिकॉज आई वाज हैड अ कंप्लीट सेशन ऑन दिस, आई थिंक कपल ऑफ सेशंस अगो, उसमें ही होता है कि जो आजमाइश के जो प्रिंसिपल्स हैं अल्लाह ताला के, या यूं समझ लीजिए जो जो परेशानियां आ रही होती हैं उसके पीछे 3-4 हिकमतें होती हैं, और हर दफा ऐसा नहीं होता कि हम उसके बारे में ये समझें कि भाई शायद ये हमें कोई हमने गलत काम किया था उसकी पनिशमेंट मिल रही है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें ब्रॉडली बता दिया कि जब भी वी आर पासिंग थ्रू ट्रायल्स, तो दीज 3 और 4 रीजंस कुड बी द पर्पस कि वो ट्रायल आपको आया, बट वी कैन नेवर बी डेफिनेट, क्योंकि अल्लाह में से हम ज़ाहिर है पूछ तो सकते नहीं है। उन्होंने ब्रॉडली बताया कि ये 3-4 वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक वजह तो आजमाइशी है। कभी गुड सर्कमस्टांसेस में तो हम ज़ाहिर है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ही वांट्स टू चेक कि भाई जब थोड़ा-सा व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, हाउ वुड यू बिहेव? तो अपना मेटल को टेस्ट करना, अपनी रेजिलियंस को टेस्ट करना, दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा जो अल्लाह ताला हमें रीज़न बताते हैं वो ये है कि एट टाइम्स ही वांट्स टू शील्ड अस फ्रॉम सम ग्रेटर कैलामिटी। यानी अगर आपको कुछ छोटी आज़माइश आती है तो उसमें क्या होता है कि यू टेंड टू बी मोर अटेंटिव एंड मोर केयरफुल, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके नतीजे में द रेज़िलियंस दैट यू गेट, होता है ना कि आप जब व्हेन यू पासिंग थ्रू क्रंच टाइम, योर इनर एबिलिटी, आपके जो अंदर के जो पोटेंशियल होता है दैट कम्स टू सरफेस एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन देन बिफोर। That's It like a psychological that's a psychological thing. भाई एक्सीडेंट हुआ तो चलो मैं बच गई, टांग नहीं टूटी तो से क्यों हो, ये भी हो सकता था। हाँ, मतलब that is you satisfy yourself and you become stronger in your inner self as well, because you see जब आप किसी tough situation से पास करके बाहर निकलते हैं तो आपकी resilience ज्यादा बढ़ गई होती है, you become tougher than before। तो दूसरा एक जो वजह होती है वो ये है कि God wants you to become a stronger person than before। तीसरा ये होता है कि आजमाइश एट टाइम्स brings you closer to God। यानी मे बी यू हैव wandered away from God किसी वजह से, आप जितनी आपको जिम्मेदारियां आपकी हैं अल्लाह ताला ने भी डाली हुई हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में भी डाली हुई हैं, मे बी यू आर नॉट फुलफिलिंग देम। कई दफा ऐसा होता है कि इन नॉर्मल लाइफ रूटीन आप जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बल्कि गलती से कुछ गलती हो रही होती है। मतलब एट टाइम्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त थे, उनको एक फाइनेंशियल कोई इशू हुआ हुआ था, तो मैंने कहा तुम देखो कि तुम अपनी जो जिनको तुमने पैसे देने हैं तुम उनको कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि वक्त पे पैसे नहीं दिए जा रहे, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो तुमने लोन्स लिए हुए हैं उनके बारे में फलां फलां तुम काम नहीं कर रहे, या ऐसा तो नहीं हो रहा तुम ज़कात वक्त पे नहीं दे रहे। तो कुछ अर्से के बाद उसने कहा कि हाँ भाई, आई सडनली रियलाइज कि दिस वाज माय लायबिलिटी एंड आई हैड ओवरलुक्ड इट, और फॉर अ लॉन्ग, और काफी देर से मैं ओवरलुक कर रहा था। तो मैंने कहा देखो ये इस तरह की आजमाइश आई है, नाउ हैज मेड यू रियलाइज। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपसे कोई चीज़ गलती से हो रही होती है, अल्लाह मियाँ आपको चाहते हैं कि यू गेट रिमाइंडेड। अच्छा, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप वो गलती जानबूझ के कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग परसिस्टेंटली एंड यू आर, और आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता एंड यू कीप ऑन डूइंग इट एज अ रिजल्ट। आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आज मैंने एक इतना किया, कल मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। तो फिर ये वो जगह है कि जहाँ अल्लाह मियाँ बाज़ दफ़ा आपकी गलतियों की तंबीह के तौर पे एज़ अ वार्निंग टू व्हाट यू हैव, एज़ अ मिस्टेक दैट यू हैव डन, आपको एक थोड़ी-सी झटका देते हैं कि भई देखो संभल जाओ। तो ये सारे सारी की सारी मसलियतें हैं कि जो आज़माइश की वज़ह से होती हमेशा लोग के सिर्फ आपको उतना ही सदमा या आजमाइश जो कुछ भी है पहुंचती है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह उतना ही आप पे वो बोझ डालते हैं। और मतलब कई दफा देखते हैं कि कई लोगों का बिल्कुल इतना एकदम है। बहुत ज्यादा एक ऐसा क्राइसिस होता है जो उनकी वाकई ताकत से बाहर है। जी। नहीं, एक्चुअली वो जो आप आयत है ना, वो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला एक इंसान के कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये जहाँ-जहाँ भी आई हुई है ना, लोगों ने इसको इस मफ़हूम में ले लिया, इस मफ़हूम में ये है नहीं। वो मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला शरीयत का कोई हुक्म ऐसा नहीं देते, जिसको फ़ॉलो करना आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो। और ये इस पस मंज़र में है कि हमसे पहले जो बनी इसराइल थे,
उन्होंने सवाल कर करके और सरकशी कर करके बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा अहकाम अपनी शरीयत में दाखिल कर लिए थे कि अगर आज भी आप तौरात पढ़ें, खासतौर से जो बुक ऑफ लेविटिकस है या बुक ऑफ नंबर्स है, आप हैरान हो जाएंगे कि वो उन्होंने सवाल कर करके इतना मुश्किल बना दिया था उस पर अमल करना कि अल्टीमेटली फिर उन्होंने बहाने तराशे उसको इवेट करने। तो उस पस मंज़र में ये कहा गया अल्लाह ताला ने कि देखो अब ये जो आखिरी पैगंबर आए हैं, ये अब आपको असर नौ दीन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई थी पिछले मज़ाहिब के लोगों ने ऐड कर दी थी, या अपनी मर्ज़ी से और या सवाल कर कर के अपने आप को मुश्किल बना के। नाउ दीज़ fetters हैव बीन अनटाइड। तो लिहाज़ा ये ज़हन में ना रखना कि जो मैं आपको दीन के बारे में हुक्म दे रहा हूँ, उनसे कोई ऐसा हुक्म है व्हिच इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। यहाँ तो अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ तक है कि आप वज़ू नहीं कर सकते, आप तयम्मुम कर लीजिए। आप नमाज़ खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो आप बैठ के पढ़ लीजिए। तो ये इस मफ़हूम में है कि जो आपको अहकाम दिए जाते हैं बेसिकली दे आर नॉट समथिंग व्हिच आर बियॉन्ड योर ओन कैपेसिटी। वो जो ये बात है ना कि बाज़ दफ़ा इंसान को गम आता है जिससे वो मतलब बाज़ दफ़ा नहीं नबरदमा हो सकता, दैट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन्स ओन डिस्पोज़िशन। बहुत सारे वो लोग होते हैं जो गम पी जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो गम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग जो हैं दे जस्ट गेट बॉग्ड डाउन, दे जस्ट लूज़ इंटरेस्ट इन लाइफ़। तो वहाँ उनको फिर हमें उनकी बैकग्राउंड के लिहाज से काउंसलिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए, ये जो आज़माइशें इंसान पे आ रही होती हैं, जो परेशानियाँ आ रही होती हैं, इसके पीछे ये हिकमत होती है। एक कमर तोड़ भी बाज़ दफ़ा मुसीबत आ जाती है। तो वी यू कैन लर्न फ्रॉम सो मेनी अदर पीपल हू हैव गॉन थ्रू सिमिलर। मैंने भी शायद किसी एक सेशन में मिसाल दी थी कि प्रॉफ़िट को एक ज़बरदस्त जो आज़माइश पेश आई, जो जो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनी, एंड ही वाज़ रियली फॉर दोज़ 20-30 डेज़ वेरी, वेरी कहते हैं मेरी ज़िंदगी के बहुत टफ दिन थे कि जब उनकी वाइफ़ पे एडल्टरी की तोहमत लग गई। आप देखिए ना, एक पैगंबर है, सिटिंग इन द सोसाइटी, गवर्निंग, ही वाज़ एट दैट टाइम वो ही वाज़ इन चार्ज ऑफ मदीना, और नए दीन की वो दावत दे रहे थे। एक बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे थे। सडनली ये आपकी जो बीवी है, उनके बारे में ये इल्ज़ाम लग गया। और अपने-अपने बहुत करीबी लोगों ने बाज़ दफ़ा विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग उसमें वो हिस्सा डाल दिया। वेरी टफ सिचुएशन फॉर हिम। या इससे इसके अलावा आप देखिए कि हज़रत यूसुफ जो थे, उनको कई साल तक बेगुनाह जेल में डाल दिया गया, और वो बादशाह भूल ही गया डालने के बाद। वो तो उनको जब ख्वाब आया, तो किसी ने कहा जी वो एक वो भी हैं जो ख्वाब को इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आप मैं गिनवाना शुरू करूँ, हज़रत अय्यूब को आप देखिए, अगर आप बुक ऑफ जॉब पढ़ें जो बाइबल में है, कुरान में भी इसका तज़किरा है सूरह स्वाद में। उनके जिस्म पे शैतान ने ये कहा कि भई जो आपने पैगंबर के बारे में ये कहा है, कि ये तो बड़े अच्छे हैं, तो ये तो इसलिए अच्छे हैं कि इनके हालात बड़े अच्छे हैं, इनके पास तो बहुत मालो-मता है, इनके इतने सर्वेंट्स हैं, इनका वो हैं। तो अल्लाह मियाँ ने ये बताने के लिए कि मेरा बंदा आज़माइश में भी शुक्रगुज़ार रहता है। अगर आप बाइबल में पढ़ें जो उनके साथ आज़माइश हुई, और खुद कुरान में भी इसका ज़िक्र है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने वो बीमार हो गए, इतने उनके जो पर्सनल जो थे ताल्लुकात के लोग, उनको वफ़ात हो गई बहुत बुरे तरीके से, उनके जिस्म में कीड़े चढ़ने शुरू हो गए थे। ही वाज़ जस्ट ज़िंदा बदस्ते मुर्दा वाली बात थी। लेकिन ही स्टिल एक्सप्रेस्ड दैट ग्रैटिट्यूड बिफोर द ऑलमाइटी, और अल्लाह ताला ने फिर बात एकदम से उसको ठीक कर दिया। तो आई थिंक स्टोरीज़ ऑफ इंस्पिरेशन जिसमें आप बता रहे होते हैं कि भई जान तोड़ मुसीबत जब भी आ जाती है, फिर भी लोगों ने इसको बर्दाश्त किया है, तो यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। थिंग्स आर ऑल नॉट दैट बैड। ये दुनिया एक टेम्परेरी दुनिया है। यहाँ आपको अगर कोई बहुत ज़बरदस्त आज़माइश आ रही है, इफ यू आर एबल टू लिव थ्रू इट, यू विल बी कॉम्पेंसेटेड इन अ वे दैट आप निहाल हो जाएँगे। मतलब देखिए ना, हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं। मैंने कितनी आपको मिसाल दी कि वो गंगाराम में एक 16 बच्चे जो थे जल के इंक्यूबेटर से मर गए थे बिकॉज़ ऑफ द जो सिस्टम था फायर का, वो ये था कि एग्ज़िट उन्होंने बनाई नहीं थी कि आग लग जाए। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें जब होती हैं दुनिया में, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। आप सोचें जिस माँ का बच्चा इस तरह से जल के मर गया हो, वो तो जीते जी मर जाती है ना। तो इतनी सख्त जब चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में फिर हम ये बताते हैं कि देखें, ये जो दुनिया आज़माइश की है, इसमें अगर आप इस दुनिया को यही कुछ समझेंगे, तो फिर तो ये ज़ुल्म है। लेकिन इफ यू हैव दिस बिलीफ कि भई यू विल बी कॉम्पेंसेटेड इन अ ह्यूज वे, इतना बल्कि कुरान से मालूम होता है कि जो आपको लॉस पे अगर आपने सब्र किया, वो कॉम्पेंसेशन इतनी ज़्यादा होगी कि यू विल फॉरगेट, आप हैरान हो जाएँगे कि भई जो मेरा लॉस हुआ तो बड़ा मामूली था। हालाँकि उस वक़्त बहुत बड़ा लग रहा था। तो ये उस केस में फिर आप काउंसलिंग करके समझा के देखिए कि अगर आप ज़िंदगी की आज़माइश को समझ लेंगे कि भई दिस इज़ ऑल दैट इट इज़, यू विल नॉट बी एबल टू बेयर इट। There's going to be a huge compensation for that, and during that time you're going to be tested. I think ये philosophically भी और conceptually भी आप जब उनको बताएँगे, तो हो जाता है, इससे बेहतरी आ जाती है। Earthquake, tsunami, hundreds of thousands are affected. जी, The poorest of the poor. Palestine देख लें, another set of people have invaded their homeland. यूरोप में जून के साथ ये हुआ था, उनको यूरोप में तो जगह दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में मतलब
maybe 2010 the floods. I mean, a lot of us went there. And it was incredible what had happened. And it had hit the forest. Hmm. Which, people, I don't know, they turn away from religion. ज़्यादा हिंदू भी चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं. जी Seemingly कोई explanation या counseling को कौन देता होगा इन जैसे लोगों को it's very difficult. And you look at Sudan, you look at so many other खास तौर पे African countries where it's a colonization of a different kind. How does that even begin to explain such tragedy? नहीं एक्चुअली देखिए वही वाली बात है कि बिफोर दैट ट्रेजेडी हैज स्ट्रक अस वी हैव एक्सेस टू गाइडेंस. हमें अगर हमने इफ वी हैव पेड इनफ अटेंशन तो इस सिस्टम ऑफ आजमाइश के बारे में बिफोर दैट आजमाइश स्ट्राइक्स अस आई मीन इफ यू सीक गाइडेंस के भी क्यों हो रहा है और इसके पीछे हाउ वी कैन गो थ्रू इट, हाउ कैन वी बी रिजिलिएंट, हाउ कैन वी अर्न मोर रिवॉर्ड बाय बीइंग पेशेंट, या प्रोएक्टिवली आप कुछ कर सकते हैं तो आप वो जरूर करें. तो जब तो वो हो जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर तो क़यामत, फिर तो मुसीबत ही है. लेकिन देखिए हम तो एजुकेटेड होने के नाते वी दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर कि देखिए आपको अगर खुदा से मुताल्लिक होना है तो ये बहुत पहले खुदा की जो ये दुनिया में तरीके हैं टू डील विद पीपल यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ दैट. तो ये अल्लाह ताला का तरीका है कि इस दुनिया में उन्होंने इसको आजमाइश के लिए पैदा किया. I think if you are able to have that philosophical concept given to a child as he grows up, 12 साल 14 साल के बच्चे को ये बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता. एंड इफ ही ग्रोज लिटिल मोर आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ यू हैव equipped them with these details that we are discussing today now here, तो he will have or she will have that background कि अच्छा हाँ ये दुनिया ऐसी है, मुझे इसके अंदर नेविगेट करना है. आई हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज थिंग्स. मुझे परेशानियां भी आएंगी, मुझे खुशियां भी आएंगी, उनके अंदर मुझे जिंदगी गुजारनी है. और मुझे देखना है कि दुनिया में बड़े-बड़े लोग आफ़तें आई हैं, लोगों ने उन आफ़तों को कैसे उससे दे हैव पास थ्रू इट एंड दे हैव मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट, और मुझे कॉम्पेंसेशन इस चीज़ की होगी. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देखें, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि एज़ अ पेरेंट या एज़ अ ग्रैंड पेरेंट ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जब खुद समझ जाएँ तो द बिगेस्ट विज़डम टू लिव थ्रू लाइफ इज़ दिस कि आप ये ट्रांसफ़र करें अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड बच्चों को. और यही वो चीज़ है जिसको हम अगर आप कभी आजकल देखें ना तो बुद्धिज़्म के हाँ ये बुद्धिज़्म इज़ स्प्रेडिंग बाय द वे वेरी वेरी एट अ लाइटनिंग पेस इन दिस वर्ल्ड. लोग कहते हैं इस्लाम फैल रहा है, It's coming back. इट्स बुद्धिज़्म तो कभी गया नहीं था जी, पहले बहुत ज्यादा अब बहुत ज़्यादा फैल रहा है. और यूएस में तो आप देखें कि Then it's going to इट्स be हाँ, right. क्योंकि मैं आपको वजह उसकी बताता हूँ. उनका सारा स्ट्रेस ये है कि हाउ टू नेविगेट थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. आपने ज़िंदगी, क्योंकि प्रॉब्लम से तो कोई none of us, या किसी की डेथ हो गई या फाइनेंशियल इशू आ गया या बीमारी आ गई या वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोनलीनेस का, या जिंदगी के बहुत सारे और मसाइल हैं, ड्रग्स हैं वगैरह वगैरह. अब हर आदमी कोई ना कोई जगह से क्रंच टाइम में वहां पे मौजूद है. तो वो आपको दे विल टेल यू, कभी आप वो सुने ना उनके योगीज का जो अभी भी मतलब यू कैन जस्ट ओपन अप यूट्यूब एंड फाइंड के चैनल्स आफ्टर चैनल्स दे आर, उनका मकसद ये है लोगों को सुकून देना और बताना कि आप दुनिया में सुकून कैसे पा सकते. So not that we agree with a lot of things that they say, but the fact is कि some of the things that they say are very effective. तो इसलिए ये चीजें हम भी बहुत सारी ऐसी हैं कि as counselors, as psychotherapists, as people who send our children to school, आपको पता है बहुत सारे जो अच्छे स्कूल हैं उनके यहाँ साइकोथेरेपिस्ट होते हैं. हाई स्कूल के अंदर देयर इज अ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट. हम तो अभी तो इतने आगे नहीं गए, लेकिन दुनिया में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इसी चीज को जरा सेकुलर अंदाज से बयान करते हैं कि देखो अगर आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपने इनको कैसे अपने फेस कैसे करना है. आपने सुसाइड नहीं करनी है, आपने जान नहीं देनी है, आपने ड्रग्स पे नहीं जाना है, इसके दूसरे सॉल्यूशंस भी हैं. तो आई थिंक ये हमें एज अ नेशन ये समझने की जरूरत है. और आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 15 years, इस तरह की काउंसलिंग एंड और लाइफ कोचिंग की ये जो इन इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस आल्सो कि हम अपने यंगस्टर्स को ये एजुकेट करके बताएं कि बिफोर एनी मेजर कैलेमिटी स्ट्राइक्स, बिकॉज देखिए अच्छे एफ्लुएंट घर के बच्चे जो होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जो उन्होंने मांगा उनको मिल गया. लेकिन कोई एक रिवर्सल आ गया तो फिर दे जस्ट डोंट नो हाउ टू फेस दैट. This is how, as parents and members of a responsible society, we need to educate the children or and the next generation कि भाई आपने जिंदगी को गुजारना कैसे है जब मुसीबत आ जाए. Problem later is She's- another group. मेरे ख्याल she didn't have a chance to. Sorry. Sorry. Thank you. That's actually a very good lecture from you. That was what I need to ask you after counseling that path.
You've been very positive about it. मुझे बातें सारी आपने की थी पॉजिटिव बातें but there is so much negativity in our lives आजकल ज्यादा. How do we deal with that frustration and negativity? People feeling wrong around us. जी, How do we a deal? single point agenda जी. We discussed this in one of our previous sessions. नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है ग्रैटिट्यूड थेरेपी. यानी आप अगर सिर्फ ये सोच लें कि मेरे पास क्या है इसके मुकाबले में कि क्या नहीं है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. मैं तो अभी वो एग्जांपल आप कहेंगे हम तुम बार बार वो एग्जांपल देते हो, लेकिन मेरे जहन में एग्जांपल ही वही आती है. अपनी आंखों को देखिए, यानी एंड थिंक ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड. अपने कानों को देखिए, थिंक ऑफ पीपल हु आर डेफ. अपना अपने नॉर्मल इंटेलेक्ट को देखिए, थिंक ऑफ पीपल हु जो पागल खाने में या इस तरह की जगहों पे दे आर लिविंग देयर इन सब ह्यूमन कंडीशन. मतलब मैं कहता हूँ कि जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट यू हैव एट एट वेरियस लेवल्स. तो आप नेगेटिविटी फ्रस्ट्रेशन भूल जाएंगे, दूसरों का गम देखेंगे और आपका अपना गम भूल जाएगा. दिस इज द सिंगल पॉइंट थिंग. मुल्क के लेवल पे अगर आप जो नेगेटिविटी है, मतलब क्या, मुझे एग्जांपल दीजिए. प्रॉब्लम क्रिएटर्स और हैं और प्रॉब्लम जिनको हो रहा है वो और ग्रुप है. नहीं देखिए, मुल्क के अंदर आपको मैं नेगेटिविटी के बारे में उलट बताता हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर टू यंगर स्टूडेंट्स. आई सी सो मच होप. आपको शायद मैं बताऊं कि पिछले 2 साल आपका जितना टैलेंट पाकिस्तान से बाहर गया है 3 साल में, अनइमेजिनेबल है. और ये ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट लोग हैं. मैं इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं. आई डोंट सी दैट नेगेटिविटी. आई फील आउटस्टैंडिंग लोग. मैं अभी आपको मैं बताऊं, मैंने एक कॉन्वोकेशन अटेंड की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की पिछले साल, जिसमें से आई मीन 300 लोग थे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स थे. उसमें आप ये देखिए कि जितने एशियंस थे और जितने ज्यादा मतलब इंडियंस और चाइनीज थे, वहां गोरा और अमरीकी तो नाम के थे सिर्फ. एवरीवन हु वर देयर वर द फॉरेनर्स. यानी थिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ वो ये है कि द टैलेंट दैट वी हैव, टैलेंट फार्म हम नहीं कर पा रहे. ब्रेन जरूर हो रहा है. अच्छाइयों अभी देखिए कि आई वाज जस्ट कमिंग हियर, तो मैंने देखा कि किसी स्कूल के बच्चे वो दस्तरखान बिछा रहे थे एक जगह पे, एंड दे वर ट्राइंग टू रोजा अफ्तार करने का बंदोबस्त कर रहे थे. तो मैं कहता हूँ जस्ट द आई दैट इज नीड्स टू बी ट्यून टू दीज इंसिडेंट्स. नेगेटिविटी देखने पे आएंगे तो आपको उसका कोई इंतहा नहीं है. और बाय द वे मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप दुनिया में फिरेंगे तो ये हर जगह पे है. ये हम सिर्फ गलत नहीं है. आपको मैं ऐसी मिसालें दे सकता हूँ फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जहां सिर्फ ये है चूंकि रूल ऑफ लॉ है तो लोग जरा थोड़े से शील्डेड हैं. अदरवाइज बर्बरियत और बारबैरिटी की जो दास्तानें बहुत सारे और ममालिक में रकम हुई हैं, सीरियल किलर्स की या सीरियल रेपिस्ट की, उससे हम बहुत दूर हैं अभी भी. तो बॉटम लाइन ये है कि देखिए, नेगेटिविटी को मैं इनकार नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हेयर इन आवर सोसाइटी. आप ही लोग देखें जो यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला की बात को सुनने और सुनाने के लिए, और आपके अपने आई एम श्योर बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे जिसपे यू बी प्राउड ऑफ दो ऑफ सच चिल्ड्रन. तो ये हमारे बच्चे हैं ना. ये इस वजह से इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अगर ये पाकिस्तान में रह के बाहर जा रहे हैं तो इसमें तो हमारा ही कसूर है कि हमने कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पैदा नहीं किया, वरना वो यहीं पर पढ़ रहे होते. लेकिन द फैक्ट इज, आपका वो कोई पोता होगा, कोई आपका भांजा होगा, कोई इनका नवासा होगा, कोई फलां का होगा, तो हमारा है. और वो वहां आउटशाइन करते हैं. दे स्कोर आउटस्टैंडिंग मार्क्स देयर. नासा का मैं आपको बताता हूँ, नासा फॉर्मरली नेवर टेक्स एनी नॉन यूएस बॉर्न पर्सन इन इट्स कोर्स. क्यों कहते हैं कि ये इतनी हसास जगह है. लेकिन नासा के अंदर इस वक्त ये 3 या 4 पाकिस्तानी इंजीनियर मौजूद हैं. ऐसी जगह पे हैं कि आपको क्लासिफाइड है वो बात, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी जगह पे पहुंच गए क्यों. कि उन्होंने देखा कि यार इतना ब्रिलियंट ये लोग हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम गो बैक टू देयर ओन कंट्री, दे आर गोइंग टू सर्व नासा. जहां पे कोई नॉन अमेरिकन नॉन यूएस बॉर्न नहीं जा सकता था एक जमाने में. तो द थिंग इज कि आप इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिविटीज, वो उसकी कोई कमी नहीं. और वो सबसे ज्यादा आपको अपनी यंगर जनरेशन में पाई जाती है. और सिर्फ यंगर नहीं, माशाल्लाह आप लोग भी हैं, मिडिल एजेस में भी हैं, बहुत ज्यादा है. ये जो टेररिस्ट हैं, जो बुरे लोग हैं, कभी आप सोचेंगे हैं कितने वैसे आपके मुल्क में? आपके 22 या 24 करोड़ में 0.01% है. लेकिन क्योंकि दे मेक हेडलाइंस बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग न्यूसेंस, एक बंदे ने हजारों को मार दिया तो आपने कहा जी सारा मुल्क ही टेररिस्ट. ऐसा तो नहीं है. इस वजह से जो बुरे लोग हैं वो चंद हैं, लेकिन बिकॉज दे डू दैट इवल परसिस्टेंटली तो दे मेक हेडलाइंस. आप ही के वो पाकिस्तानी लोग जो यहाँ कानून तोड़ रहे होते हैं, सबसे ज्यादा कानून पसंद बन जाते हैं बाहर जाकर. तब हम ही वो लोग होते हैं ना. तो इस वजह से आई थिंक दिस इज एक थोड़ी सी आई थिंक वी नीड टू
इवेल्युएट दीज थिंग्स के पॉजिटिविटी बहुत है। जो एक बहुत बड़ा फर्क हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्क में वो ये है, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो बहुत सारे देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी जमीर की वजह से लॉ को ओबे करते हैं, और एक वो होते हैं जो कानून के डंडे से करते हैं। ज्यादातर वो दूसरे होते हैं हर मुल्क में। तो दूसरे मुल्कों में कानून का डंडा इतना ज्यादा है कि वो लॉ तोड़ते नहीं हैं। वरना अगर उनको पता चल जाए कि लॉ कुछ भी नहीं करेगा, वहां पे भी यही लॉलेसनेस हो। वो आपको पता है ना, ब्लैक संडे जो ब्लैक मंडे हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, जब वो प्रोवर्बियली 12 घंटे तक लाइट नहीं थी, जितनी लूट मार वहां पे हुई ये न्यूयॉर्क में हुआ। तो मैं, और अभी भी हो जाता है। इस वजह से ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वी आर, Our loss is their gain. नहीं देखिए, आप यहाँ रह जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो इसमें नहीं देखिए, इसमें तो मैं आपको बताऊं, जो बेसिक जहां पे वी आर फॉल्टरिंग वो ये है कि देखिए हमारा जो लिटरेसी रेट है उसको देखिए जरा। हम कितने पढ़े लिखे हैं, यानी बेसिकली हम जाहिल लोग हैं। हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन गांव में है जहां पे तालीम वो आने नहीं देते, बिकॉज ऑफ बड़ी चीज जो कि देखें, जब हमारे मुल्क आजाद हुआ था तो नेहरू ने द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, जो इंडिया को तरक्की की राह में उसने मतलब लगा दिया, उसने फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया। उसने कहा था इस तरह की कोई चीज नहीं होगी कि आपकी जागीरें होंगी, आप गांव और चौधरी आप होंगे। दैट एक्चुअली टुक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे यहाँ वो जागीरदारी का निज़ाम साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, NWFP में इतना ज्यादा है कि इस चंद आपके जो 1% एलीट हैं जो एजुकेटेड हो जाते हैं। बाकी बेचारों का क्या कसूर। मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में आया तो जिसने टॉप किया था स्कूल में, वो पंजाब भर से आई गॉट इट टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो जो जिसने टॉप किया था पंजाब बोर्ड में, तो जो लड़का आया वो एक उर्दू मीडियम स्कूल से था, और वो इतना ब्रिलियंट था कि मैं हैरान रह गया कि अल्लाह ताला ने शायद कोई जीनियस पैदा किया है। सिर्फ एक वजह से ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन कॉलेज, उसको अंग्रेजी नहीं आती, और ब्रिलियंस का इंतहा कोई नहीं थी उसकी। तो आप ये देखिए ना कि ये बात कि आप अंग्रेजी की ना आने की वजह से एक वो बच्चा जो कि इतना ब्रिलियंट है, अगर उसको आती होती तो कहां से कहां पहुंच जाए। तो ये वो नाहमवारी है जो हमने क्रिएट की हुई है। तो यू सी, वी हैव टू टेक द ब्लेम आवरसेल्व्स आल्सो कि हम 1% या 2% एलीट के मुल्क हैं असल में। दैट इज ऑल। बाकी आपका अंधेरा है। आपको पता है ऐसे इस वक्त गांव मौजूद है जहां बिजली नहीं है। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस यहाँ पे अभी भी वही होता है कि वो जलाते हैं लालटेन और लकड़ी जलाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आई एम सॉरी, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलना पड़ेगा। देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एग्री 100%, लेकिन वी आर टू ब्लेम एज वेल। हम में से कितने लोग हैं जो मुल्ला के पास जाने की जरूरत क्यों पेश आती है आपको? आपके पास कुरान है, अल्लाह ताला की हिदायत है, आपके फोन में है, आपके घर में है, आपके पास एक्सेस है टू अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स जिनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो जरूरत ही क्यों पेश आए? और फिर ये देखिए कि जब आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही करेंगे। देखिए इस वक्त कोई निकाह पढ़ाने वाला, क्या कोई बाप ऐसा है जो अपनी बेटी का निकाह पढ़ाए? वहीं जाना पड़ता है। क्या कोई बंदा है जो किसी को फौत हो गया तो उसको गुस्ल दे के बाकी राइट्स पूरे करे, या खतने करवाए, या बाकी जो काम जितने जितने होते हैं? नहीं, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो हमने वो इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट किए कि ये काम तो हमें खुद करने चाहिए। एज अ फादर आई शुड बी गेटिंग माई डॉटर निकाहिफाइड, व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट? तो देखिए ये वी हैव लेफ्ट इट टू दोज पीपल। इस वजह से मैं एक और बात कहता हूँ कि थोड़ा सा शुक्रगुजार भी हमें होना चाहिए कि चले कुछ ना, हमने अपनी जो काम नहीं किए, चले थोड़ा बहुत तो वो कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तो वो वही जो उनको मदरसे में सिखाया गया है, वो एक बैकवर्ड तरीके से सिखाया गया है। इसलिए थोड़ा सा वी हैव टू बी हमदर्द ऑल्सो टू देम एंड रियलाइज कि द फॉल्ट लाइज नॉट एज मच एज विद देम एज विद आवर ओन सेल्व्स, बिकॉज वी हैव लेफ्ट दैट प्लेस वेकेंट। तो सोचते हैं वो अनअकाउंटेबल है ना। ये जो अब तो बहुत बेहतर हो गया है, कई मस्जिदों में पढ़े लिखे लोग फतवे देते हैं। पहले आप उनकी बातें तो सुनते हैं, वो क्या कहते थे जिन्हें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल मतलब आई 100% एग्री, लेकिन उनकी बातों की बजाय व्हाई डोंट वी हैव द कुरान विद अस? आई मीन यू सी, आप देखिए, मैं अगेन देखिए, यू आर राइट अबाउट इट कि क्या आइडियाज लेके जाते हैं। इसी वजह से देखिए ना, आप हमारी यंगर जनरेशन दे वुड नॉट लाइक टू गो विद देम। हर माँ जिससे मैं वाकिफ हूँ, बट आई नो अ लॉट ऑफ मदर्स जो यंग मदर्स हैं वुड लाइक देयर चिल्ड्रन टू गेट नोन टू द कुरान। वो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कारी साहब घर में आए और बच्चे को कहेंगे कि तुम उनसे कुरान पढ़ो, बच्चा ऐसा भागता है। ही वुड नॉट, ही इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी ही विल रन अवे।
इस भाई आप एज अ मदर इफ यू टेक अ स्मॉल मोर एफर्ट आप खुद बच्चे पढ़ाएं अपने बच्चे को, इतना खुद सीख लें कि आप पढ़ा सकें, या किसी ऐसे कारी साहब को हायर करें कि who was able to make sense out of the thing that he is teaching. You see, हम religious education को we have left it ourselves. So let's blame ourselves also. Let's at least share the blame. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस महीने में, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अल्लाह करे कि हम सब बाकी 12 महीने की सेल्फ ग्रोथ, जिसमें आपने कहा कि एवरी इंडिविजुअल, जी किताब आपके सामने है, अहकामात उसमें है, Right. आप उसके मुताबिक यू डेवलप योरसेल्फ। बिल्कुल। अब कुरान जो है वो सिर्फ एक किताब फर्द के लिए नहीं है, हम्म वो एक मजमुआ भी बन जाता है। उसमें शरीयत भी है, ममालिक भी है, मुख्तलिफ ट्राइब्स भी है। सो द एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो कम्स। बिल्कुल। हम जब यहाँ पे और इस किस्म यानी बहुत सी माशाल्लाह ऐसी सेशंस हैं where we talk as being better individuals, जी who is going to make us into a better nation। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कुरान में है कि आपने अपनी अल्लाह रसूल किताब एंड देन वी लुक एट द लीडरशिप। अब लीडरशिप में मुख्तलिफ किस्म की है। आप ज़कात का जिक्र आप कर रहे थे, बेहतरीन निज़ाम ज़कात का गवर्नमेंट ने बनाया 20 साल पहले। पहला इस्लामी मुल्क जिसमें ज़कात को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। अब वो जिस हाल में है और जो कुछ वहाँ हो रहा है वो हम सब जानते हैं। Who is responsible for poverty, for ignorance? Schools आप देखिए, रूरल अर्बन डिवाइड देखें। We elect our people or supposedly elect। जी इस्लाम में एक और सॉरी कुरान इंडिविजुअल गाइडेंस भी आप माशाल्लाह इतना अच्छा, कलेक्टिव कलेक्टिव एंड स्टेट देखिए मैनेजमेंट, कलेक्टिवली who is and accountable कौन है और जिम्मेदार कौन। मैं जी फॉर एग्जांपल आपने जी इंडिविजुअल की बात की, जी वी हैव विद अस अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर। जी वो बहुत कुछ सुनेंगी, समझेंगी एंड शी विल बिकम अ बेटर डॉक्टर। जी बट आई एम टॉकिंग आगे अबाउट हो गए इंस्टीट्यूशन इज जी वर्किंग इन, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं ना, द इशू इज दैट वी आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स इनटू एन इस्लामिक बादशाह। बिल्कुल। इंडिविजुअल की तो हम बात कर देते, देखिए जी उसके अंदर मैं आपको कोई बताऊं कि ग्रुप है आप जैसा, कोई ग्रुप तो ग्रुप है, यही है ना कि जी सेल्फ ये अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात है। आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को लीडर बनाया होता है, बॉर्न लीडर्स होते हैं, मे बी यू आर वन ऑफ देम। सो यू सी एक कुछ लोग वो होते हैं कि हु टेक द फर्स्ट स्टेप, जो एक इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे ही वो एक इनिशिएटिव लेते हैं कि बहुत सारे वो लोग जिनके अंदर करेज नहीं होता टू टेक द फर्स्ट स्टेप, दे बिकम मीनिंगफुल। तो इस तरह के मौके पे ऐसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जिनको अल्लाह ताला ने कम्युनिटी लीडर बनाया किसी ना किसी लेवल पे। मैं कहता हूं कि आप कम्युनिटी लीडर को कोई बहुत बड़ा आदमी ना समझें, बहुत बड़ी खातून ना समझें, कोई कम्युनिटी, मे बी अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन फ्रेंड्स, मे बी अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन वर्क प्लेस, कहीं पे भी आपका सर्कल है ना, वहां पे एवरी कोई ना कोई एक फर्द होता है जिसके अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी होती है। तो ये वो जिम्मेदारी अगर वो महसूस कर लें कि भाई बिकॉज आई कैन मोटिवेट पीपल, बिकॉज आई कैन इंस्पायर देम, सो देयरफॉर आई हैव वन मोर स्टेप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मे बी इफ आई टेक चार्ज, मैं उनको ये बताऊं कि देखिए एज इंडिविजुअल्स वी कैन मेक अ डिफरेंस। और वो क्या है कि स्टार्ट ऑफ बाय आवर ओन सेल्स, अपने आप को आप दुरुस्त करें और फिर कलेक्टिवली जब आप इस जगह पे आ जाते हैं तो इस शऊर को, इस अवेयरनेस को आप स्प्रेड करें amongst your children, amongst the people that you know slowly, and that awareness वो इसी तरह से आता है कि जो दुनिया में think tanks बने हैं, वो think tanks they have passed through these stages, कि people who are aware of this, people who have that concern, they come together and they divide certain tasks between them, और फिर होते होते फिर जाहिर है सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, उन्हीं से फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही बनती हैं एंड फिर एक चेंज भी आता है। बट स्टार्ट वहीं से होता है कि एक कम्युनिटी लीडर जिसके अंदर वो लीडरशिप की एबिलिटी है, he or she is able to mobilize people for the collective good. So, let's take
पाकिस्तान एग्जाम्पल, ये तो माइक्रो लेवल है ना, तो शुरू मैक्रो पे नहीं, शुरू वहीं से होता है। देखिए, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो। मैं जी सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में यहाँ पे लीडर्स आप बनना चाहते हैं बड़े अच्छे, बट यू आर देन अकाउंटेबल, not just you, any leader is accountable. How do you make people accountable through Quranic accountability? क्या होगी उन जो लोग उठते हैं कि हम लीडर बनेंगे, हम तालीम देंगे, हम गुर्बत खत्म करेंगे? What does the Quran say? How are, if they do not give, if they do not deliver, उनकी सजा क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो वो मॉरल अकाउंटेबिलिटी है। मॉरल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस एक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसमें आपने ये कहा जी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स। उसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। भी आपको मैंने एक जिम्मेदारी लगाई कि भाई प्लीज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर टास्क तो कोई प्यूनिटिव मेजर है जो तय होगा। तो ये तो कम्युनिटी लेवल पे होगा। स्टेट लेवल पे ये काम पार्लियामेंट करती है, या वो जगह पे जहाँ पे लोग जो नुमाइंदगान हैं वो आते हैं एंड दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। एंड अगर वहां पे इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे शुड हैपन, तो इसका मतलब है ना कि सिस्टम में कोई खराबी है। लेकिन पुरानी जजा सजा सब है मौजूद ऐसे लोगों के लिए, कुरान में लिखा हुआ है कि ये हो कि ये हो कि ये हो, लेकिन वो कहते हैं 21st सेंचुरी में सो कॉल्ड पीपल जो ह्यूमन राइट्स के जिंदादा है, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो वी आर, एंड जो यहाँ कर रहे हैं वो बड़े खुश है, वो कहते हैं हाँ ठीक है। सो असल चीज वो है, माशाल्लाह, यू गॉट अ ग्रुप ऑफ 50, 100, 1000 under her leadership, your leadership, एक लाख हो जाएंगे, बट द इंडिविजुअल्स, द कलेक्टिव। सो मैंने वही कहा ना जी कि दैट इज कलेक्ट। अगर अगर कोई कम्युनिटी लीडर, इट्स ही और शी कम्स फॉरवर्ड एंड इज एबल टू गैल्वनाइज पीपल, सी हाउ। आप देखें ना, आप गांधी को आप देखिए, या कायदे आजम को आप देखिए, या वर्ल्ड लीडर्स को देखिए, उन्होंने क्या किया था। दे वर जस्ट वन, लेकिन अपनी कैरिज्मा की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से, अपने ऑनर और इंटेग्रिटी की वजह से दे वर एबल टू इंस्पायर पीपल। तो ये ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। The thing is that they don't come forward, or they are not allowed to come forward in our society, because यहाँ मामला उलट हुआ है। इसी वजह से देखिए, आई थिंक कि एक जो बहुत बड़ी जगह है वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, कि जब तक आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं सही होता, जिससे देखिए पीपल आर चर्निंग आउट फ्रॉम देयर। आपके जो लिटरेसी रेट है उसका हाल मैं भी बता चुका हूँ कि 35-40% पीपल आर लिटरेट, और वो भी वो हैं कि जो अपना साइन कर सकते हैं। एक्चुअल लिटरेसी इससे भी कम है। कभी आप, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स बताऊं, कि कभी आप नोट कीजिए कि हर साल ना वो एक स्टेटिस्टिक्स शाया होते हैं इन अप्रैल, मार्च अप्रैल में, कि कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक करते हैं, उसमें से कितने लोग फेल हो जाते हैं और फिर एफएससी में जाते हैं, और कितने एफएससी में जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं और फिर बीए में जाते हैं, और कितने हैं जो बीए में जाते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर एमए में से जाते हैं। इतना ऐसे शार्प है। यानी मैट्रिक में 80,000 लोग जो हैं वो जाएंगे और 20,000 पास हो जाएंगे। ये एक एक परसेंटेज है। जैसे ही आप इसको आगे लेके जाएंगे तो वो जो डिक्लाइन है वो इससे भी ज्यादा है। तो यू सी, और ये भी एजुकेशन एक, आप जैसे जो यहाँ पे टीचर्स हैं या जो यहाँ पे एजुकेशन से बताएंगे, इट्स स्टिल अ वेरी पुअर एजुकेशन दैट वी आर गिवन। उसमें से भी जो पास परसेंटेज वो ये है। तो अनलेस, मेरा जो थीसिस है वो तो ये है कि जब तक हमारा जो बैकबोन है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन डजंट मीन जस्ट इंफॉर्मेशन, बट कैरेक्टर वाइज, और भी इंसानियत के पहलू से भी और इस पहलू से भी कि यू प्रॉपरली एजुकेट देम। इस वक्त ये साइकिल हमारे यहाँ नहीं चल रहा, और नतीजा ये निकला हुआ है कि हमारा मुल्क तकसीम हुआ है इन अ लॉट ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स। उर्दू मीडियम अलग हैं, इंग्लिश मीडियम अलग हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अलग हैं, गांव के स्कूल्स अलग हैं जहाँ पे स्कूल टीचर जाता ही नहीं है। तो आप देखिए इतना ज्यादा जो डिस्पैरिटी है। मैंने आपको मिसाल दी कि द पर्सन हु केम एंड टॉप्ड इन आवर यूनिवर्सिटी, इन आवर कॉलेज, ही वाज रेलेगेटेड बैक, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी। तो आप अंग्रेजी तालीम का इशू, अब देखिए ना, जब तक एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपके पूरे मुल्क में नहीं होगा। दुनिया में आप देखिए किसी मुल्क ने तरक्की की, आप जापान को देखें, आप जर्मनी को देखें, ये दो मुल्क हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो गए। यानी वॉर इंडेमिनिटी इतनी ज्यादा थी कि हर बच्चा वो पे कर रहा। नाउ लुक एट व्हाट दे आर डूइंग। जर्मनी का वन ऑफ द बेस्ट एवर एजुकेशन सिस्टम मैंने पर्सनली देखा है। जापान का मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। तो देखिए बैकबोन हमारी एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है फिलहाल एजुकेशन प्रॉब्लम की प्रायोरिटी नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन इतनी महंगी है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ये डायलेमा है कि हम सबको फेस कर रहा है, जिसके अंदर
यानी कोई कोई ऐसा मेजर होना चाहिए कि जिसमें वी आर एबल टू इंक्रीज आवर लिटरेसी रेट एंड गिव देम स्किलफुल एजुकेशन। मैं आपको जर्मनी का एक बड़ा अच्छा सुनाता हूँ। वहां पे इतनी उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने ये किया कि वो कहते हैं कि देखो, हर आदमी एकेडमिशियन नहीं बन सकता। अल्लाह मियाँ ने हर एक को पढ़ाई के लिए नहीं पैदा किया। वो कहते हैं तीन तरह के लोग हैं। एक वो है कि जो स्पोर्ट्समैन है, एक है वो टेक्नीशियन है, और एक है जो पढ़ाकू है। तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बाद इसको तीन स्ट्रीम में तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट 5 इयर्स के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन से का बेंड किस तरफ है। कुछ लोगों को अल्लाह ने पैदा ही स्पोर्ट्स के लिए किया है, तो उनको आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं इतना इंटेंसिवली? ये नहीं कि उनको ना पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई जरा और तरह की होगी। कुछ लोग हैं जो टेक्निकल माइंडेड हैं, उनको आप क्यों चाहते हैं कि उनको हर तरह की तालीम दी जाए, उनको फिजिक्स ही पढ़ाई जाए? नहीं, उनको उनको टेक्निकल बनाएं। वो इतना खिदमत करेंगे कि आपकी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको आपकी मुल्क की वो ठीक करेंगे। और कुछ लोग हैं जो एकेडमिशियंस हैं। तो यू सी, आप दुनिया में जो एजुकेशनल मॉडल्स हैं उनको स्टडी करें, उनको देखें, तो दिस इज हाउ नेशंस हैव रिजन एंड डेवलप्ड। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, तो हम सिर्फ एडहॉकिज्म कर सकते हैं। हर एक गवर्नमेंट आती है, वो एक अपनी छोटा सा कोई रिफॉर्म करेगी। अब ये देखिए कि पिछली गवर्नमेंट ने एसएनसी शुरू किया, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब उन्होंने कहने को तो एक बड़ी अच्छी चीज शुरू की, लेकिन उसके अंदर कोई टीचर्स ही नहीं मिल रहे थे उनको। यानी आई बीन पार्ट टू सम एक्सटेंट पार्ट ऑफ दैट। तो पता ये लगा कि करिकुलम जो आपने प्रपोज किया है उसको बनाने के पहले लोग तो होने चाहिए। वो ऐसे आपको उस लेवल के लोग नहीं मिल रहे। तो यू सी, आई थिंक इट इज हियर दैट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट। एजुकेशन इज समवेयर दैट वी नीड, रियली नीड दैट थिंग टू कम ऑन। आई डोंट नो कि वो कौन शुरू करेगा, लेकिन आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट। Question is, who will bell the cat? आई That's थिंक the problem. वी आर द कैट्स आवरसेल्व्स। मैं तो कहता हूँ हम ही कैट हैं। I that is बहुत कुछ है। तो बहुत चोर बाजा। Some questions here. हाँ जी। These are social problems and we can keep on discussing it. I have a quick question about Quranic interpretation. उसमें आजकल की चीज चल रही है, जो बहुत लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, आप तजदीद किस हद तक करते तजदीद हैं? जी, क्या मतलब? जैसे आप हाउ डू यू काइंड ऑफ आप इश्तिहाद की बात करें? सॉरी, आई एम सॉरी, इज्तिहाद। अच्छा, जी, नहीं देखिए, इज्तिहाद का लफ्जी मतलब हमें समझने की एक मिसकंसेप्शन है। इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म नहीं है, देयर इज नथिंग, नो गाइडेंस अवेलेबल, तो यू कीप इन व्यू द स्पिरिट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना एंड यू गिव अ न्यू वैल्यू जजमेंट। अब जैसे क्लोनिंग है, या टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ अर्सा पहले इसके मसला शुरू हुआ, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, सरोगेसी है, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन है, या इस तरह की नई नई जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें हम क्या राय देंगे? इज्तिहाद का लेवल ये होता है। मेरा ख्याल है जो आप शायद सवाल करना चाह रही हैं वो ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को हम अगर एक जामिद चीज मान लें, एक स्टैग्नेंट चीज मान लें, तो क्या वो रिविजिट की जा सकती है? नहीं, देखिए, न्यू एज से मैं आपको बताऊं कि इट विल नॉट मैटर वेदर द एज इज न्यू और नॉट, इफ द कुरान इज अंडरस्टूड एंड इट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज केप्ट ऑन बीइंग रिवाइज्ड, तो वो एक प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए। यू सी, व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो एक दफा की अंडरस्टैंडिंग आज से 1000 साल पहले लोगों ने कर ली है, वो उसमें जम गए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्सेज इज अ ह्यूमन एंडेवर। यानी मैंने कुरान की एक आयत को समझा, हो सकता है सही समझा, हो सकता है गलत समझाओ। इफ समवन आफ्टर मी और समवन माय कंटेम्पररी कम्स एंड सेज कि भाई आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, इसमें फलां फलां चीजें हैं, तो ये वो काम है दैट शुड नेवर स्टॉप। Revisiting, re-evaluation of things that have already been re-evaluated. Because why? इसकी आपको एक मिसाल साइंस से देता हूँ। साइंस में आप एरिस्टोटल से शुरू करें या टॉलेमी से शुरू करें, तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक जियोसेंट्रिक यूनिवर्स है, अर्थ इज एट द सेंटर और बाकी सब लोग घूम रहा है, इसलिए कि बाइबल की भी इसको तौसीक हासिल थी। लेकिन उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, या यूं समझिए साइंटिसिज्म आया, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप इजाद की, कॉपरनिकस ने अपनी क्वेश्चन दी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो सारा बात ही उलट है, इट्स नॉट अ जियोसेंट्रिक, इट्स अ हीलियोसेंट्रिक। यानी सन है सेंटर में और आप उसके गिर्द घूम रहे हैं। अब अच्छा, उसके बाद फिर न्यूटन ने ही डेवलप्ड सम मोर थ्योरी, उसके बाद आइंस्टाइन ही डेवलप्ड सम मोर, एंड देन स्टीफन हॉकिंग एंड द रेस्ट आर स्टिल डूइंग दैट। तो ये वर्क ऑफ गॉड है, यूनिवर्स, उसको इंटरप्रेट किया साइंटिस्ट ने, एंड स्लोली एंड श्योरली दे आर ट्राइंग टू मेक अ मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये है क्या। तो वो कुरान इज द वर्ड ऑफ, ये वर्क ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड है। तो वर्क ऑफ गॉड को भी इंसानों ने समझा और वक्त के साथ इंटरप्रेट करते करते एक बेहतर मॉडल की तरफ वो जा रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड के बारे में ये हुआ कि वो भी इंसानों ने समझा, लेकिन जो कुछ इंसानों ने समझा उनको आपने सेक्रेट बना दिया कि भाई उनकी समझ से अब आगे हमने खुद खुद नहीं समझ। यहां पे गलती हुई है।
तो जैसे वर्क ऑफ गॉड के लिए इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट शुड कंटिन्यू फॉर एवर। तो वर्ड ऑफ गॉड का यही मामला है कि या तो अल्लाह मियां ने इंटरप्रेट कर दिया होता तो फिर तो हम कुछ ना कहते। जब ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है, तो दैट मस्ट बी kept on revising and reevaluation until the very end of time. Yahan it is here that we are falling short. Just like this moon sighting. बहुत सी जगहों पे डेवलप्ड वर्ल्ड है, they already know this thing. लेकिन जो हमारे लिखा हुआ है कि मून, अब इसको आप कैसे करते हैं? What is right? नहीं मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रॉफिट के जमाने में द ओनली वे टू नो अबाउट अ न्यू मंथ वाज मून साइटिंग। कोई मजहबी चीज है ही नहीं है। ये ऐसी है कि जैसे आपको पता है कि ये घड़ियां तो अभी इजाद हुई हैं। जब ये जोहर असर और मगरिब का वक्त होता था तो वो लोगों ने एक सन डायल बनाया होता था या एक वो लकड़ी होती थी, उसमें वो कपड़ा डालते थे कि साया अगर ये हो गया तो जोहर हो गया। जैसे ही घड़ियां आई पता चल गया कि भाई अब ये एग्जैक्ट टाइम जोहर असर का क्या है। यू डोंट गो एंड सी द सन आउटसाइड, वरना पहले लोग सूरज देख के नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसे ही अब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन आ गई हैं जिसमें चांद की जरूरत ही नहीं है, बेचारे को छोड़ दें। ये चीज बाद में ये उस वक्त के लिए नहीं देखिए वो एवरीथिंग हैज टू बी टेकन सेपरेटली केस टू केस। आपने चूंकि चांद की मिसाल दी तो मैंने आपको वो बता दिया कि इसका कोई लिंक नहीं है। आप कोई और मिसाल दें तो मे बी आई कैन एक्सप्लेन दैट। पर्दे के बारे में तो बहुत से लोगों का ये है कि अच्छा, ये एक टॉपिक है जो मुझे किसी ने कहा था, इसको मुस्तकिल तौर पे विल टेक इट अप इन वन ऑफ द कमिंग सेशंस। तो अगर मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू इन द शॉर्ट टाइम दैट वी नाउ हैव। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि उस वक्त हुक्म आया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की ख्वातीन के लिए वो निकलती थी तो वो काम करते थे, जो उनके लिए था, बाकी के लिए नहीं था। तो आपने कह दिया कि एक अलग से जी, क्योंकि वी कैन हैव इट के लिए था। ये देखिए ना उसकी वजह है, उसकी वजह है ना कि देखिए ना प्रॉफिट के साथ कुछ चीजें थी जो खास थी। देखिए जैसे उनको तहज्जुद की नमाज उन पे फर्ज थी, हम पे नहीं है। उनके बारे में अज़वाज का एक अलग ज़ाब्ता था जो आम मुसलमानों के लिए नहीं है। उनके बारे में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस थी जो, तो ये असल में उनकी जो हैसियत थी वो ऐसी थी कि बिकॉज़ नो वन इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉफिट आफ्टर हिम, तो ही हैड टू कंडक्ट सर्टेन रूल्स ऑफ बिज़नेस टू सो टू स्पीक। तो वो हम अगर कुरान को पढ़ेंगे तो वो कुरान अंदर से बता रहा है कि भाई ये उस वक्त की जो सिचुएशन थी जिसके अंदर ये मामला थे, इसको सही करने के लिए था। इट्स नॉट गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। तो वो हम खुद कुरान से जान लेते हैं कि कहाँ पे वो लोकलाइज्ड है और कहाँ वो ये कहता है कि इट्स लाइक अ यूनिवर्सल थिंग दैट इज फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स देयर आर, बिल्कुल। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जन्नती का जो अभी किसी ने सवाल शायद लास्ट टाइम जब किया था कि जन्नत का जो पस मंजर अल्लाह ताला बयान करते हैं वो अरबों के लिहाज से है। अब ऊंची ऊंची नहरें हैं या शहद की नहरें हैं, बहुत सारी वो चीजें हैं, ये अरबों को बहुत अपील करता था। या कंट्री साइड की बहुत सारी वो हैं। तो कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि अगर अरब वो आप कहते हैं कि वहाँ गोल्फ कोर्स होगा, वो कहते हैं वो क्यों होता। लेकिन आज के लिहाज से अगर कुरान उतरता तो वो शायद यही कहता कि भाई ये और ये चीजें होंगी, ये रिजॉर्ट्स होंगी, फलां होंगी। तो कुरान अरबों को बताने के लिए आया, लेकिन उसने एक जुमला ऐड कर दिया कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और इसके अलावा बाकी आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, ताकि फॉर द रेस्ट ऑफ अस जो अब बाद में आ रहे हैं हमें पता चल जाए कि भाई सिर्फ उधर वही नहीं होगा जो कि वहां बताया गया है, बल्कि सब चीजें होंगी। तो ये देखिए ये मजबूरी है कि जिस कौम को जो सिखाया जा रहा है उसकी बात चीजों को डिस्कस किया जाएगा, वरना उसको समझेंगे नहीं वो। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप ये लिया गया, ये कहा गया कि देखिए अब मुसलमानों अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको पहुंचाना है बाकी लोगों तक। उनको फिर वो चीजें बताई गई जो यूनिवर्सल बताया गया कि दिस इज नाउ फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो कुरान इज वेरी इजी इस लिहाज से कि आप एक जगह पे उसने अरबों की इस्लाह की तो वो अरबों ही की। आप देखिए कि अरब क्या करते थे कि दे वुड नॉट, वो तवाफ नंगे बदन करते थे। उनके यहाँ जो बैतुल्लाह का तवाफ का खास तरीका ये था कि वो सीटियां और ताली बजाते थे। अभी हम तो नहीं करते, वही करते हैं। तो कुरान में आयत उतरी उनकी इस्लाह की। अगर कोई कहे जी कि ये तो उनके लिए, हम कहेंगे हाँ जी उन्हीं के लिए, कि छुट्टियां तो वही बजाते थे, हम तो नहीं बजाते। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे डिड एंड दे हैड टू बी रिफॉर्म्ड, और उसकी कुरान ने बता दिया हमें। तो ये एक किताब जो कि किसी एक नेशन को दी जाएगी तो मजबूरी है कि उस नेशन की बात चीजों को डिस्कस करके वहीं खत्म कर दिया जाए और हमारे लिए लेसन दिया जाए कि देखो ये ऐसे इनकी इस्लाह की गई।
एंड फॉर यू हैव टू डू इट लाइक दिस। अदरवाइज अगर अल्लाह मियाँ सारी दुनिया को इकट्ठा पैदा करके एक ही किताब दे देता तो फिर तो शायद would have been something different। लेकिन ये दिस इज आप कह लीजिए ना कि अल्लाह मियाँ ने तरीका ये इख्तियार किया कि ही सिलेक्टेड सर्टन पीपल एंड गेव देम अ सर्टन टास्क। और मुसलमानों से पहले यही बनी इसराइल को ये जिम्मेदारी दी गई, उससे पहले औरों को दी गई थी। तो यू सी यू हैव टू फाइंड आउट कि जो हिस्टोरिकल सीक्वेंस में अल्लाह मियाँ ने तरीका क्या इख्तियार। मियाँ को नहीं specifically तो पुलिस करनी चाहिए, कि मतलब looks तो देंगे, जब कहीं नहीं है तो because some of them have left, so this can टाइम है नहीं टाइम है, मैं किसी और बात कर रहा था। ये सामने पड़ा हुआ है, just like interpretation of the Quran, the revisiting, time and again कि अब जैसे सूद का मामला है जो बहुत अर्से से चला आ रहा है। अब हमारी मेरी अपनी ही फैमिली के मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अब ये क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई है और मतलब हमने अब डॉलर से बेसिकली हमारे रुपए ने कम्पीट करना है, तो इट्स ओके कि अगर आपके पास ज्यादा कोई अमाउंट पड़ा है तो आप उसको रख के बैंक में उसे मतलब सिंपल ये है कि इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट्स को हम करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, दैट इज फाइन। इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट ये ऐसी है जैसे आपने किसी को लोन दिया है, उस लोन में भी अगर आपने किसी को 5 लाख का दिया और आपने कहा 2 साल के बाद दोगे तो वो 5 लाख को 2 लाख रह जाते हैं। तो उस केस में भी आप यही करेंगे, उनसे कहेंगे जी कि देखिए मैं 5 लाख के बकदर कोई स्टेबल कोई चीज को मैं कमोडिटी को करूंगा, 5 लाख के लेट से 10 तोला गोल्ड आता है, तो अब मैं आपसे 10 तोले गोल्ड के बराबर की मनी लूंगा वापस, जो कि 2 साल बाद बनेगी, बिकॉज मनी इज गोइंग टू बी डिप्रिशिएट। वैसे ही इसका मामला भी है सूद का भी, कि अगर आपको जो पैसा आ रहा है जो असल में इन्फ्लेशन रेट से भी शायद कम है, तो जो आप पैसा वो ले रहे हैं तो आप असल में सूद ले नहीं रहे। डॉक्टर साहब उन लोगों का क्या करें who are very मतलब like my brother, उनको छोड़ दें। देखिए क्यों आप चाहती हैं, आप वो करें जो आप सही समझती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इंसान, देखिए इंसान कभी भी उनकी समझ एक नहीं हो सकती, और हर एक को अल्लाह मियां ये कहते हैं कि मैं आपकी समझ के लिहाज से आपसे सवाल करूंगा। आपकी जो समझ है, जो आप ऑनेस्टली समझती हैं, नॉट आउट ऑफ कन्वीनियंस, जो ऑनेस्टली सिंसियरली आप समझती हैं, आपके लिहाज से अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी है। अगर आपके भाई उसको सही समझते हैं तो वो फ्री है, उन्होंने अल्लाह मियां से सवाल जवाब उसी के मुताबिक करना है। अल्लाह मियां ने कहना है अच्छा तुम्हारी ये समझ है, आई विल आस्क यू अकॉर्डिंग टू यू व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज। तो इसलिए एक और चीज एज अ फैमिली हमें ये कर लेना चाहिए कि देखिए वी हैव नॉट बीन सेंट टू कन्वर्ट और कन्विंस पीपल कि भाई तू मन के छोड़, नहीं, आप अपनी हम्बल अंडरस्टैंडिंग बताएं। आप कहें जी कि दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड दीज आर माय आर्ग्यूमेंट्स, मेरी रीजनिंग ये है। रीजनिंग बता के बस पीछे हट जाए। ये जो है ना जोर लगाना कि भाई मेरी माने, क्यों भाई वो भी इंसान है, उनको मानने दें अपनी माने। और मैं तो आपको ये कहता हूँ मेरी भी ना माने, आपको अगर कोई मेरी बात अगर आप मुख्तलिफ लगी है तो आई फील कि आपको नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं इस्तदलाल कोई कर रहा हूँ, अगर मेरा इस्तदलाल कमजोर है तो उसका मुस्तहिक है कि वो रद्द हो जाए, लेकिन अगर वो कवि है या वो आपको कन्विंस करता है, आप जरूर माने। तो हमें असल में इसमें बहुत लॉजिकल होना चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। आप अपने भाइयों से भी ये पूछ सकती हैं कि भाई आप अगर ये बात मान रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव, दैट्स इट, एंड लेट इट बी। उस जमाने में बैंक अकाउंट्स पैसे नहीं थे, पैसे के थोड़ा इंतजाम करते हैं, राइट, बहुत फर्क पड़ गया जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी इंटरेस्ट का ये भी हम ऐसा करेंगे, we'll have a separate session on interest because this is another very nagging subject and a very troublesome and a sensitive issue। तो पर्दे पे भी और इस पे भी we'll have separate sessions। गिल्ट हो जाता है डॉक्टर, इतना गिल्ट होता है, फिर बंदा फिर फंस जाता है, फिर थिंकिंग कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही। नहीं देखिए आप गिल्ट हरगिज आपको गिल्ट, मैं इसलिए आपको एडवाइस करूंगी आपको नहीं होना चाहिए कि देखिए आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप बस जो कुछ भी है, अगर उसमें आप सिंसियरली एक चीज को समझ रही हैं तो बस उसको आप फॉलो कीजिए। हाँ, कल आपको अगर कोई क्रिटिकली कहता है कि देखो जी आपकी इस अंडरस्टैंडिंग में फलां कमी है, इसके बजाय ये ज्यादा बेहतर है, आप अपने पाथ चेंज कर लें, दूसरा अडॉप्ट कर लें। तो अल्लाह मियां ये तो नहीं कहता कि जो आपने समझ लिया वो हमेशा फाइनल होगा, इंसान की समझ में तरक्की होती है। तो जिस चीज को आप जिस वक्त मान रही हैं आप उसके लिहाज से अल्लाह ताला के आगे मुकल्लफ हैं।
तो आप देखिए अल्लाह मियाँ ने बहुत सिंपल कर दिया हुआ है। वो कहते हैं गिल्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सिंसियरली, वो तो देखिए इधर तक कहते हैं कि अगर आपने गलत नतीजा निकाल लिया है किसी बात का, लेकिन सिंसियरली आपने उसका वही सही मतलब समझा है, तो मेरे मेरे लिए वो ऑनर होगा। दिस इज व्हाट द कुरान हैज सेड एट वन प्लेस, कि if you decide something, if you interpret something which is actually not correct, but in all honesty you thought that it is correct, I'll not penalize you for that. तो ये तो अल्लाह मियाँ इतना ज्यादा करें, जब जब ये हो तो फिर तो गिल्ट की तो आई डोंट थिंक इट शुड एवर रिमेन। और अपने पे ध्यान दीजिए जी, फॉरगेट अबाउट योर योर सन, योर ब्रदर, योर सिस्टर। और उनसे अगर बात करनी भी है तो आप बस जस्ट गिव गिव योर ओन रीजनिंग। मैं इस बात को इसलिए मानती हूँ, और लोगों को आजाद कर दें। मतलब ये इट शुड बी इन अ फैमिली। आई नो फैमिलीज जिसमें 5 अफराद हैं, पांचों की मुख्तलिफ राय है। सियासत के बारे में नहीं होती हमारे मुल्क में, यानी एक ही घर में 5 लोग हैं, 5 मुख्तलिफ पार्टीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये मजहब में भी ऐसा ही है, बल्कि हर चीज में ऐसा है, क्योंकि देखिए इंसान आजाद है। Thank you, Dr. Saab. थैंक यू जी। Dr. Saab